So good morning once again, and I welcome you all. Hope all of you are doing good today. So we'll begin our fifth session. I guess this is our fifth session. So we'll begin with the fifth session. And in the previous session, I mean, of course, there was a gap of 1 day now. So just to brief you again, in the previous session, we had completed uh, in fact, statutory FLN features. And after that, we went on to create the accounting masters. We looked into how to create, alter the accounting masters and how the F12 settings for all these screens work, how the grouping works, how the ledgers work, how cost center. Yeah, we will be looking at cost centers today. So we'll begin with cost centers in accounts info section, and post that we will try to finish up our inventory info as well. Right? Yes, so I'll start sharing my screen. Hope all of you are able to view the screen. And yes, we began with accounting master. So I'll just move on to the first option again. ये पहले option पे, that is accounts info, and we will be also looking at the inventory info as well. So we'll just go inside the accounts info and we look at what we did. We'll just go to, I will just run through what we did day before yesterday. So, or rather in the previous session. तो यहाँ पे आप देख लेंगे कि हमने ग्रुप्स कैसे होते हैं, यानी अकाउंटिंग ग्रुप्स यानी क्या होते हैं, ये इंफॉर्मेशन देखी थी. इसमें बाय डिफॉल्ट कितने ग्रुप्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे देखी थी. एक्चुअली पहले एक जस्ट डे बिफोर यस्टरडे कंफ्यूजिंग सवाल था कि एक जब भी आप कोई भी नया कंपनी टैली में बनाते हो तो उस वक्त कितने ग्रुप्स बाय डिफॉल्ट क्रिएट होते हैं. तो कई लोगों ने काफी सही आंसर दिए थे, जैसे इसमें 28 ग्रुप बाय डिफॉल्ट क्रिएट होते हैं और इसमें जो 2 लेजर है वो बाय डिफॉल्ट क्रिएट होते हैं. सो जो 28 लेजर है, 28 लेजर में से फिर से 15 जो ग्रुप्स है वो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं. थोड़ा कंफ्यूजन ग्रुप अप हुआ था प्रीवियस सेशन में कि वो 13 ही दिखाई दे रहे थे. उसका रीजन ये था, देन आई ट्राई टू फाउंड आउट बिकॉज even I got confused that how come from 15 the number could come to 13 all of a sudden. So basically it is 15 ledgers, primary groups created by Tally. So I'll just show you where it is. So in display, we are going to display and list of accounts. So in list of accounts, you can see 29 groups, but yeah, of course, we created one group, and that's the reason it is showing as 29 groups. If you remember, we had created admin expenses as group, and that's the reason it is showing us 29 groups, right? Yeah. So by default, Tally has 15 primary groups. 15 primary groups. Whatever you can see, we are touching on the left side of our screen are called as primary group. If you open that, any group, and you can see under primary. So primary groups are, on the top levels. That is the topmost level of the grouping hierarchy. So same way we created admin expenses and which we marked as a primary group, and that's the reason it is displayed. It is displayed as primary group. And once you select under or the group as a primary, then in that case, Tally asks you the question like, I mean, it has to take some information from you, whether this group is assets, liability, expense, or income. Yeah. And then rest of the 13 groups are the subgroups. We call them as a subgroup. So whichever you can find little insight from the left screen, that is reserves and surplus, bank accounts, cash in hand, deposits, all those we call as a subgroups. Okay, so that way we have got 13 subgroups by default created in Tally. Yeah, day before yesterday, the problem we had
just because of this affiliate feature, in which we had activated this option, enable income and expenditure account instead of P&L account. And that was the reason the primary groups were shown as 13 and not 15. Okay, so that thing is clarified. I thought, let me clarify it for you in case you try to create something, and if you activate this option, you use income and expenditure account instead of profit and loss account, then you may say 13 groups instead of 15 groups. That is primary groups I'm talking about, of course. And then, as I said, you have got 13 of these subgroups which are located inside this group section. Yeah, we have got 13 subgroups. Subgroups are the groups which are placed under existing groups. So now current assets is my existing primary group, below which you can find bank accounts, right? So here was a little bit a piece of information about how the default structure of Tally is created, and mainly the group and ledger section. So that's what we were looking at in the previous session. Moving back to the previous screen, that is accounts info, we had completed till groups and ledger. We will be looking at cost centers and cost categories. So we have cost centers and cost categories here. Sorry, many people still joining, and that's the reason I need to take a pause in between to admit them in a session. So please bear with me. Yeah. So I hope you understood the concept. What do you mean by cost center? I think on the second day, that was I was sharing knowledge with you about F11 feature. In F11 feature, we had accounting feature. I'm so sorry. I think there is a problem with the internet connection. That's the reason the screen is frozen. I'm having some problems still. It's not getting shared. So we will move on to the section called cost centers and cost categories. I hope you have understood what we mean by cost centers and cost category, how you can use cost centers and category. We had already discussed in detail. हम काफी length में इस चीज को discuss कर चुके हैं in the second session or second and third session, wherein I had explained to you how the cost center works for you, right? So I suggest and I hope you are doing your homeworks back at home after you finish your sessions. So ये आपको cost centers और cost category है. जैसे आपको याद रहेगा, we had created few cost centers. Now if you go to display, you can see so many cost centers have been created. So left side what you see are the cost centers name. जो आप left side में देख रहे हो, ये screen के table के screen पे आप देख रहे हो, तो left side में आपको जितने भी नाम दिखाई दे रहे हैं वो अपने cost centers है, और right side में जो department, branches, projects ये जो लिखा हुआ आप देख रहे हो, इसको हम cost categories कहते हैं. अभी कॉस्ट कैटेगरीज और कॉस्ट सेंटर कैसे वर्क होते हैं ये हम देख लेंगे. ऑफ कोर्स आई मीन नॉट इन डिटेल, बट आपको एक ब्रीफिंग, उस दिन भी मैंने आपको ब्रीफिंग किया था, फिर भी आई विल शो यू वंस अगेन. इफ आई गो टू डिस्प्ले लिस्ट ऑफ अकाउंट्स और चार्ट ऑफ अकाउंट्स, ये लिस्ट ऑफ अकाउंट्स काफी अच्छी चीज है जिसमें आपको पूरे आपके जो भी मास्टर्स क्रिएटेड है उसकी यहाँ पे लिस्टिंग आपको इजीली मिल सकती है. तो इन केस आई वांट टू गो टू से कॉस्ट सेंटर्स ऑप्शन, यू कैन सी यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है आपको, जो स्क्रीन को टच कर रहा है, that we call as a cost category. So branches is my cost category, department is cost category, primary cost category is my cost category, project is my cost category. Whereas project A and project B are the part or the cost centers
and part of project cost category. See, just pay right attention on my wordings as I say. Project A and Project B are cost centers which belong to cost category called project. Cost category called project, and that is not a cost center. But whereas if you look at the above example, department is cost category, but accounts department and sales department are cost centers which belong to department category, whereas Akshay is a part of accounts department. Both are cost centers and both of them belong to department category. Same way Ajay and Vijay are the cost centers of a cost center called sales department. So if I open this Ajay, you can see the difference. So Ajay, the cost category is department, then the cost center name is Ajay, and which is this particular cost center is placed under sales department, right? So how it works basically. So in case we just look at our few of the sales entries, or rather, so many entries we have done. For example, traveling expenses. So traveling expense of 5,000 rupees. Usually when we say cost centers or profit center, we can allocate it only once. आपने अगर 5,000 पाउंड कॉलम में लिखा है लेजर के सामने, तो ये 5,000 आप एक ही बार अलोकेट कर सकते हैं, राइट? पर यहाँ पे मैंने कॉस्ट सेंटर कितने बार अलोकेट किए सेम 5,000 अमाउंट? ये डिपार्टमेंट कैटेगरी को एक बार 5,000 की है, ब्रांचेस कैटेगरी को 5,000 एक बार की, और प्रोजेक्ट कैटेगरी को भी एक 5,000 मैंने यहाँ पे अलोकेट की। ऐसा नहीं तो जाके वहीं फिर के आया चलो दोस्त। ओके, सो इसका यूज कहाँ पे होता है मैं बेसिकली, तो इसका यूज जो है, अगर मुझे कुछ इंफॉर्मेशन देखनी है कि मुझे ब्रांच लेवल पे देखनी है, मुझे डिपार्टमेंट लेवल पे देखनी है, और मुझे प्रोजेक्ट लेवल पे भी देखनी है, तो सेम कॉस्ट मैं मल्टीपल टाइम्स अलोकेट कर सकता हूँ, राइट? और इसके लिए हम कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट कैटेगरी यूज करते हैं। आई होप आई एम क्लियर विथ माय explanation. In case you do not understand, or if you have any confusion about cost center and cost category, the concept is very simple. Only thing you need to understand how it works. तो अभी हम जाते हैं मास्टर क्रिएशन पे। जैसे मास्टर में आपने देखा था कि अकाउंट्स इन्फो में कॉस्ट कैटेगरीज है और कॉस्ट सेंटर है, तो कॉस्ट सेंटर किस तरह क्रिएट किए जाते हैं? जैसे आपने लेजर और ग्रुप क्रिएट किए थे, सेम वही तरीके से आपको कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट करने हैं। ये देखिए, आपको सेम यहाँ पे क्रिएट, डिस्प्ले, ऑल्टर, ये ऑप्शंस आ रहे हैं। ये जो ऑप्शन आपने लेजर में दिखे थे, सॉरी मैं आपको एक बात कहना भूल गया था पर लास्ट सेशन में, कि ये जो सिंगल लेजर और मल्टीपल लेजर क्या होता है। तो सिंगल लेजर यानी कि एक ही लेजर मुझे क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करके। बट वेयर एज इन केस आई वांट टू क्रिएट मल्टीपल लेजर्स एट वन गो, एग्जाम्पल आप अज्यूम कीजिए कि आपको आप नया स्टार्टअप कर रहे हो, या तो आप इन बिटवीन आप टैली पे मूव हो रहे हो, और मूव होते हो तो आपके पास डेटा तो है, और ये डेटा में आपको जो भी मल्टीपल लेजर्स क्रिएट करने हो, आप एक साथ क्रिएट करना चाहते हो, राइट? तो ये एक साथ क्रिएट करने के लिए, फॉर एग्जाम्पल बैंक अकाउंट से, मेरे पास मल्टीपल बैंक अकाउंट है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फटाफट से क्रिएट कर देता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अंडर बैंक अकाउंट्स, क्योंकि मैंने जो ग्रुप है ऊपर ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका हूँ। ओपनिंग बैलेंस लिखना है तो आप ओपनिंग बैलेंस लिख सकते हो, या तो एचडीएफसी बैंक है तो मैं एचडीएफसी बैंक लिखूंगा, राइट? इससे क्या होता है, आपका जो टाइम है, जो मल्टीपल लेजर्स क्रिएट करने का जो टाइम है, वो काफी बच जाता है, आप सेव कर सकते हो टाइम। एंड दैट इज हाउ मल्टीपल लेजर क्रिएशन और एनी मल्टीपल मास्टर क्रिएशन हेल्प्स यू आउट। इसका डिसएडवांटेज इतना है कि आपको सारी इंफॉर्मेशन आप इसमें नहीं लिख सकते। आप देखेंगे तो यहाँ पे तीन जो इंपॉर्टेंट कॉलम है वो यहाँ पे टाली ने प्रोवाइड किया है, जैसे नेम ऑफ द लेजर, कौन से ग्रुप के अंडर है वो ग्रुप, और उसका ओपनिंग बैलेंस। बट वेयर एज आप सिंगल जब भी लेजर क्रिएट करते हो, फॉर एग्जांपल अभी ये जो लेजर मैंने क्रिएट किए, इसको मुझे अल्टर करना है, तो देखिए आपको यहाँ पे कितने पैरामीटर्स मिलते हैं, राइट? यहाँ पे काफी सारे पैरामीटर्स आपको मिल सकते हैं। तो इसका ये एक आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज सिंगल लेजर और मल्टी लेजर क्रिएशन में मिलता है। सेम वे
सेम कंसेप्ट आपको कॉस्ट कैटेगरी और कॉस्ट सेंटर्स में भी आता है। तो जैसे हमने कहा कि इतने सारे हमने कॉस्ट सेंटर क्रिएट किया, अभी एक नया कॉस्ट सेंटर मुझे क्रिएट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ? सबसे पहले तो मुझे ये जानकारी टैली को प्रोवाइड करना है कि ये जो मैं कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर रहा हूँ ये कौन से कैटेगरी का हिस्सा है। फॉर एग्जाम्पल मेरी और एक ब्रांच आ गई, देखिए मैं फिर से कहता हूँ, मेरी और एक ब्रांच आ गई, मैंने ऑलरेडी मुंबई पुणे तो कर लिया है, सपोज मुझे बैंगलोर ब्रांच क्रिएट करना है, तो ये इसको मैं बैंगलोर ब्रांच को अंडर प्राइमरी चूज करता हूँ। इनकेस आपको इसका बैंक डिटेल प्रोवाइड करना है तो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो, या तो नो कहिए, आप सेव कर लीजिए। तो ये देखिए एक ब्रांच में आपको बैंगलोर करके ऐड हुआ है, विच इज अ पार्ट ऑफ ब्रांचेस, यानी कैटेगरी इसकी जो है ब्रांचेस है, राइट। सो अगर मैं इसको एंट्री में यूज करना चाहूँ तो सेम अभी हम वही सिमिलर एग्जांपल ले ले कि ये 10,000 रुपया स्पेंड हुआ है। 10,000 स्पेंड किस पे हुआ है? सपोज डिपार्टमेंट, यानी ये जो एम्प्लॉय का नाम है सपोज विजय है, तो इसको मैं 6,000 रुपया दे रहा हूँ, और मे बी से अक्षय है उनको मैं 4,000 दे रहा हूँ। और ठीक है, उसके बाद में मुझे और एक इंफॉर्मेशन स्पेसिफिक कौन से ब्रांच के लिए एक्सपेंस हुआ है, तो मैं कहता हूँ कि बैंगलोर ब्रांच के लिए मेरे इसमें से 6,000 रुपये स्पेंड हुए, और मुंबई ब्रांच के लिए मेरे 4,000 स्पेंड हुए, राइट। तो इस तरह से मैं एक ही, देखिए आपको सिर्फ एक ही एग्जांपल इसमें, मतलब एक ही इसमें पॉइंट समझ में लेना है कि डेबिट में या यहाँ पे मैं जो भी अमाउंट लिख रहा हूँ 10,000, ये मैं 2 बार अलोकेट कर रहा हूँ 2 डिफरेंट कॉस्ट कैटेगरी को, और वो कॉस्ट कैटेगरी के अंदर जो कॉस्ट सेंटर्स है उनको मैं सब कैटेगराइज कर सकता हूँ यहाँ पे, या तो सब डिवाइड कर सकता हूँ। इस तरीके से मैं कॉस्ट सेंटर्स और कॉस्ट कैटेगरी यूज कर सकता हूँ। आई गो बैक टू माय स्क्रीन, दैट इज कॉस्ट सेंटर्स एंड कॉस्ट कैटेगरी। ये देखिए कॉस्ट सेंटर से देख लिए, इसी तरह हम कॉस्ट कैटेगरी भी क्रिएट कर सकते हैं। कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करना एकदम सिंपलेस्ट सी बात है कि आपको जो भी कॉस्ट कैटेगरी का नाम देना है वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। अभी आपके मन में शायद ख्याल आ जाएगा कि अगर मैं कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट कर रहा हूँ, ओके, और एक कैटेगरी इनकेस मुझे क्रिएट करना है, तो इसमें आप देखेंगे तो आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, अलोकेट रेवेन्यू आइटम्स एंड अलोकेट टू नॉन रेवेन्यू आइटम्स। अभी ये रेवेन्यू आइटम्स और नॉन रेवेन्यू आइटम्स क्या है, मेरे ख्याल से मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि रेवेन्यू आइटम और नॉन रेवेन्यू आइटम क्या होता है। सो जो भी लेजर बिलोंग्स टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बिलोंग करते हैं, दोज लेजर्स वी ट्रीट एज रेवेन्यू आइटम्स, उनको हम रेवेन्यू आइटम्स कहते हैं। जो भी लेजर्स आप बैलेंस शीट के लिए क्रिएट करते हो उनको हम नॉन रेवेन्यू लेजर्स कहते हैं, राइट। या सो अगर मैं ये पर्टिकुलर ब्रांच जो है इसको मैं कहूँ कि मुझे ये बैलेंस शीट आइटम में भी दिखना चाहिए, तो मैं यहाँ पे यस कहता हूँ। अभी इसका आपको कैसे यूज होता है डेटा एंट्री में आप देख सकते हो। सो इन केस मैं पेमेंट कर रहा हूँ, से फॉर एग्जांपल मैं कोई फिक्स एसेट परचेस कर रहा हूँ, ओके, विच इज बैलेंस शीट आइटम, तो हम एक फिक्स एसेट परचेस करेंगे। Sorry, so many people still joining, and that is the reason you are getting some pauses here from my side. Yeah. So suppose मैं एक balance sheet item create कर रहा हूँ, say I can say motor vehicle or maybe car. Okay, this is my balance sheet item. I may say Audi car. Okay, maybe this is purchased for the director, so I'll say Audi car, and I'll just keep it under fixed assets. You can subgroup. Okay, in case your company, your organization has multiple vehicles, then you can subgroup them under fixed assets. Maybe you can say cars, you can say trucks or staff vehicles, whatever. According to your requirement, you can subgroup. You can create multiple subgroups here. सो फिक्स एसेट में मैं डलवा रहा हूँ, और इसको देखिए कॉस्ट सेंटर्स एप्लीकेबल अगर यस करता हूँ, यहाँ पे ये देखिए बैलेंस शीट का आइटम है, नॉन रेवेन्यू आइटम है, इसको मैं यस करता हूँ, और यहाँ पे सपोज जो भी है 50 लाख रुपीज में अगर डालता हूँ यहाँ पे ऑडी की कार, तो आप देख सकते हैं इसमें से ब्रांचेस और प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी ये दो ही दिखाई दे रहे हैं। हमने कितने कैटेगरीज क्रिएट किए हैं, ब्रांचेस, डिपार्टमेंट,
प्रोजेक्ट्स और प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी डिफॉल्ट है। प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी डिफॉल्ट होने की वजह से उसमें ये दोनों ऑप्शन सेट किए गए हुए अलोकेट टू रेवेन्यू आइटम्स एंड अलोकेट टू नॉन रेवेन्यू आइटम्स। तो इसलिए मुझे इवन बैलेंस शीट आइटम यानी मेरी ऑडी कार या तो फिक्स एसेट है उसमें भी मुझे कॉस्ट कैटेगरी में ये दिखाई दे रहा है। सो इन केस कल फ्यूचर में या तो अभी इसके बाद में अब आप प्रैक्टिस करोगे एंड उस वक्त आपको लग रहा है अरे मुझे ये तो कॉस्ट सेंटर या कॉस्ट कैटेगरी दिख ही नहीं रही है, तो इसका रीजन ये हो सकता है यू वुड नॉट हैव डिफाइंड दिस कॉस्ट कैटेगरी टू बी यूज फॉर नॉन रेवेन्यू आइटम्स। अगर आपने इसको नॉन रेवेन्यू आइटम्स के लिए ना कहा है तो वो आपको डेटा एंट्री में दिखा ही नहीं देगा फॉर बैलेंस शीट आइटम फॉर नॉन रेवेन्यू आइटम्स, right? I hope I'm clear with this point. I'll move ahead. So this is the simplest way you can create the cost category, and this is the simplest way you can create your cost centers. Cost center create करते वक्त आपको दो चीजें का ध्यान रखना है। एक तो उसकी कॉस्ट कैटेगरी जो है वो परफेक्ट चाहिए, जो भी आप कॉस्ट कैटेगरी डिफाइन कर रहे हो वो परफेक्ट चाहिए। और ये कॉस्ट सेंटर अगर मुझे एग्जिस्टिंग कॉस्ट सेंटर के अंडर डलवाना है या प्राइमरी में डलवाना है वो मुझे मेरे मन में क्लियर होना चाहिए। या तो मैंने अपना चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया है कॉस्ट सेंटर्स का तो उसमें ये मुझे क्लियर होना चाहिए कि ये अजय करके जो बंदा है इनको मैं कौन से कॉस्ट सेंटर के अंडर डलवाना चाहता हूँ। दैट यू नीड टू प्री डिफाइन। या तो आपको एक इंफॉर्मेशन पहले ही रेडी रखनी चाहिए, लिख के रखनी चाहिए, सो इट विल मेक योर वर्क इजियर, राइट? प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, मैंने जैसे कहा कि अगर आप ये कॉस्ट सेंटर्स को कभी भी पेमेंट में यूज करना चाहते हो, and the biggest example I had given few sessions ago, that in case you are using cost centers for payroll, because payroll में जो भी आप employees के नाम create करते हो वो आप cost center थ्रू ही create करते हो। और cost center को जब employee को आप salary देते हो, आप salary देते वक्त आपको उनके बैंक डिटेल्स लेना जरूरी होता है, तो you can provide bank details in this, right? So we move to the next section, that is budgets. बजट्स देखने जाए तो काफी बड़ा सेक्शन है। आप समझ में आप उनके उसमें जितना डीप जाओगे उतना आपको समझने के लिए मतलब थोड़े कॉम्प्लिकेशंस नहीं कह सकता मैं, इजी तो है, लेकिन आपको वो कंसेप्ट समझ लेना। जैसे कोई भी चीज मैं पहले से भी कहता हूँ कि आप बाय हार्ट मत करो, इसको आप कंसेप्ट समझ के ले लो। कंसेप्ट समझ के लोगे तो सिमिलर कंसेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो। टैली भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, इसमें आप जो भी मास्टर्स इंफॉर्मेशन यहाँ पे देख रहे हो, भले वो अकाउंट्स इंफो वाला मास्टर्स हो या तो इन्वेंट्री इंफो वाला मास्टर्स हो, इनका जो कंसेप्ट है वो सेम रिमेन रहता है। सो बजट्स में जाओ, अगर मैं क्रिएट करूँ, आपको बजट्स का एग्जाम्पल भी मैंने दिया था कि आपका होम बजट होता है, आपका सिविक बॉडी बजट होता है, आपका स्टेट बजट होता है और आपका कंट्री लेवल बजट होता है। कंट्री लेवल बजट में तो आप देख सकते हो कि कंट्री लेवल बजट में आप डिफरेंट डिफरेंट आपके जो डिपार्टमेंट्स है उन पे आप स्पेंड करते हो। हालांकि अगर आप न्यूज देख रहे हो तो आप शायद देखते रहोगे कि चाइना ने अपना सिक्योरिटी वाला बजट यानी जो उनका संरक्षण डिपार्टमेंट है उसका बजट उन्होंने 3 गुना, हमसे 3 गुना बढ़ा दिया है या तो उतना कर दिया है। सो दिस इज हाउ द बजट वर्क्स। I'll disturb once say। अभी ये बजट अगर हमें क्रिएट करना है तो आई कैन क्रिएट बजट फॉर एग्जांपल एट एन ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अगर ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे देखना है तो मेरा बजट क्या हो सकता है, तो ये बजट मेरा से मैं कहता हूँ एक्सपेंस बजट है मेरा, राइट? मैंने एक्सपेंसेस के लिए एक बजट बनाया, तो ये बजट में मेरा पीरियड क्या होना चाहिए, मंथली मैं बजट बना सकता हूँ, मैं एनुअल बजट बना सकता हूँ। यूजुअली तो लोग या तो ऑर्गेनाइजेशन जो है एनुअल बजट बनाते हैं या तो प्रोजेक्ट के लिए बजट है तो मैं प्रोजेक्ट बजट बना सकता हूँ कि एक पर्टिकुलर नया प्रोजेक्ट मेरे पास आया है तो उसमें मैं कितना एक्सपेंस या इनकम के लिए या तो डिफरेंट लेजर्स के लिए डिफरेंट ग्रुप्स के लिए मुझे बजट एलोकेट करना हो, ये मुझे डिफाइन करना होता है यहाँ पे। सो 1/4/20 एंड अप टू 31/3/21 इज माय बजट पीरियड, राइट? ये मैंने पूरे साल का बजट दे दिया। इसके बाद में टैली मुझे इंफॉर्मेशन पूछ रहा है ये बजट आपको ग्रुप पे एप्लीकेबल करना है, लेजर लेवल पे एप्लीकेबल करना है या कॉस्ट सेंटर लेवल पे एप्लीकेबल करना है। सो आप डिफाइन कर सकते हो कि आपको कहाँ पे ये बजट एप्लीकेबल करना है।
तो सपोज मुझे ग्रुप लेवल पे करना है, तो यहाँ पे मैं कोई भी मेरा एग्जिस्टिंग ग्रुप चूज कर सकता हूँ। जैसे मेरे एक्सपेंसेस डायरेक्ट या एक्सपेंसेस इनडायरेक्ट है, उसमें आपको कॉस्ट सेंटर पे भी देना है तो आप कॉस्ट सेंटर भी डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे। तो आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, उसमें मुझे अजय नाम के जो भी मेरा एम्प्लॉय है, ये अजय नाम का जो एम्प्लॉय है, इनके ऊपर मेरा जो बजट का अमाउंट रहेगा शायद से 5 लाख रुपया। ओके, सो अगर मुझे ग्रुप वाइज एंड कॉस्ट सेंटर वाइज करना है तो ये मैं कर सकता हूँ। सेम में मैं फिर से डायरेक्ट एक्सपेंसेस चूज करके मैं, या तो मैं ब्रांच लेवल पे करता हूँ चलिए, क्योंकि मुझे शायद जो ग्रुप लेवल का बजट है वो मुझे यहाँ पे नहीं करना है कि इंडिविजुअल कॉस्ट सेंटर लेवल पे नहीं करना है। तो सपोज मेरा ब्रांच लेवल ये 1 करोड़ का बजट है, राइट राइट, 1 करोड़ का बजट है। मे बी मुंबई पे मेरा बजट है 5 करोड़ का, और सपोज पूना के लिए मेरा बजट है 3 करोड़ का। सो इस तरीके से आप अपना बजट डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे। और ये बजट बेसिकली क्या करता है कि आपको ट्रैक करके देता है कि आपने बजट कितना सेट किया था और आपने एक्चुअल एक्सपेंस कितना किया था। तो जो मेरे कॉस्ट सेंटर में इंफॉर्मेशन है, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, इनको मैं मेरे डेटा एंट्री में यूज करता हूँ। और जब भी मैं यूज करता हूँ तो मुझे मेरा डिफाइंड बजट कितना है और मेरा एक्चुअल स्पेंडिंग कितना है वो मुझे बताता है कि ये इतना, दोनों का दोनों एक कॉलम फॉर्मेट में मैं देख सकता हूँ कि ये मेरा बजटेड फिगर है और ये मेरा एक्चुअल स्पेंडिंग है। और उसके बाद में आप थर्ड कॉलम इसमें क्रिएट कर सकते हो। आपको कॉलम क्रिएशन का तो पता ही है, जो न्यू कॉलम करके आप क्रिएट करते हो, तो उसमें आप न्यू कॉलम क्रिएट करके उसमें आप लिखिए कि मुझे वराइज देखना है, तो आपको वराइज यानी ये दोनों का डिफरेंस कितना है ये आपको देखने को मिलेगा। अभी काफी कबार हमें एक क्वेश्चन भी आता है, सर मैंने बजट तो सेट किया है लेकिन मुझे अलर्ट आना चाहिए, जैसे मेरा बजट एक्सीड होता है तो मुझे अलर्ट आना चाहिए, तो अलर्ट मिल सकता है कि टैली में? नो, टैली डज नॉट प्रोवाइड एनी अलर्ट। In case you want to get those alert to be automized, then we need to customize that portion to provide you alert. और यूजुअली हम कस्टमाइजेशन की बात करें तो कस्टमाइजेशन हम ज्यादा प्रमोट नहीं करते, दो इट इज अ रेवेन्यू जनरेटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर अस, हमें इससे पैसा मिल सकता है प्रोग्रामिंग का, लेकिन हम या टैली ज्यादा कस्टमाइजेशन के लिए क्यों नहीं वॉच करते कस्टमर को, या तो कस्टमर को ज्यादा प्रोत्साहित नहीं करते। इसका रीजन ये है कि जितना आप कस्टमाइजेशन करते हो उतना आपके सिस्टम पे बर्डन आता है, जो आपका डेटाबेस है उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, आपका साइज बढ़ जाता है डेटाबेस का, क्योंकि उसमें इंफॉर्मेशन ज्यादा स्टोर करनी होती है। या तो जब भी मैं कस्टमाइज करता हूँ और कोई भी रिपोर्ट पुल करता हूँ तो मुझे काफी सारी इंफॉर्मेशन डिफरेंट डिफरेंट टेबल से पुल करनी होती है, उसकी वजह से आपके स्पीड परफॉर्मेंस में इश्यू आ सकते हैं। मैं कह रहा हूँ आ सकते हैं। तो इसके लिए हम यूजुअली कस्टमाइजेशन ज्यादा प्रमोट नहीं करते, बट ये जो सिंपल कस्टमाइजेशन है जो आपको सिस्टम को लोड नहीं देने वाले, जैसे इनवॉइस प्रिंटिंग है, छोटे मोटे रिपोर्ट है, सिंगल टेबल वाला रिपोर्ट है, सिर्फ मुझे ग्रुप लेवल पे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो ये सब आप कर सकते हो। लेकिन अगर वेरी कॉम्प्लेक्स रिपोर्ट है तो देन इट मे पुट सम बर्डन ऑन योर सिस्टम। तो अगर मैं यहाँ पे अलर्ट का बोलूँ तो एवरी टाइम क्या होगा, जिस टाइम मैं भी कोई भी पेमेंट का एंट्री कर रहा हूँ, टैली विल गो एंड चेक कि ये चीज के लिए कितना बजट सेट है। सो एवरी टाइम क्या होगा, आपका थोड़ा वो पॉज आ जाएगा, इसमें थोड़ा आपको डिले आ जाएगा, क्योंकि टैली बैकएंड में आपके सिस्टम में चेक कर रहा है कि ये जो लेजर आपने सिलेक्ट किया है या तो इसका जो ग्रुप है ये कोई बजट में हमने सेट किया है क्या नहीं, तो इसको अलर्ट देना चाहिए क्या नहीं। सो दिस इज हाउ द कस्टमाइजेशन वर्क्स। एनीवे, वी आर मूविंग अहेड। इसमें अगर लेजर मुझे सेट करना है तो आई कैन प्रोवाइड लेजर बजट। लेजर बजट में देखिए स्पेस बार आप प्रेस करते हो तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट लेजर जो आपने क्रिएट किए हैं वो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा ट्रैवलिंग बजट है, ओके, ट्रैवलिंग बजट। अभी देखिए आप इसमें एक मजे की बात देख लीजिए कि जैसे हमने ग्रुप मल्टीपल बार हमने वहां पे डिफाइन किया, यहाँ सेम वे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस मेरा बैंगलोर का कितना होना चाहिए ये मैं डिफाइन करता हूँ। सपोज बैंगलोर का मेरा ट्रैवलिंग बजट है 30,000 रुपए का, या तो से सॉरी नॉट 30,000, आई कैन से 3 लाख रुपए का मेरा बजट है। और सेम ट्रैवलिंग एक्सपेंस मेरा से मुंबई के लिए है से 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया। और से ट्रैवलिंग एक्सपेंस पुणे के लिए है
मेरा से 5 लाख रुपया। सेम में मेरा कन्वेंस है या तो मेरा सैलरी है, सो आई जस्ट क्रिएट ऑल्ट सी इज माय सैलरी लेजर। सो आई जस्ट क्रिएट, देखिए ऑल्ट सी प्रेस करके मैं कहाँ से भी मेरे लेजर्स क्रिएट कर सकता हूँ। सो दैट इज व्हाट आई एम डूइंग। मुझे एक सैलरी लेजर चाहिए था तो मैं सैलरी लेजर क्रिएट करता हूँ। जीएसटी एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल। TDS applicable, yes, to certain extent is applicable, but as of now I'm keeping it not applicable because we are not activated payroll in this one. So suppose Bangalore का मेरा salary budget है से 20 लाख रुपया, और से सेम मेरा मुंबई का बजट है 1 करोड़। ओके, ये मेरा मुंबई का बजट है। सेम में सैलरी अकाउंट है, ये पुणे का मेरा बजट है से 50 लाख रुपया। So this is where you can define your budgets. I hope I am very much clear. मैं जो भी बात कर रहा हूँ, my information, whatever I'm just trying to share with you, the knowledge sharing I'm trying to do with you is clear, and you are able to understand what I mean to say, right? In case yes, you can show me a thumb, or maybe you can write in the chat box, yes, we will move ahead after that. So we have seen how to create budget. ये बजट किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं, ये बजट कहाँ पे सेट किए जाते हैं, ग्रुप लेवल पे कैसे किए जाते हैं, लेजर लेवल पे कैसे किए जाते हैं, और कॉस्ट सेंटर लेवल पे किस तरह से आप कर सकते हो, ये भी मैंने बताया। अभी मैं बता रहा हूँ। ये कॉस्ट सेंटर लेवल पे देखिए, अगर आपको कॉस्ट सेंटर करना है, सो मे बी आई से बैंगलोर, क्योंकि मैं अभी फिलहाल ब्रांच लेवल का ही बजट ले रहा हूँ। सो आई से बैंगलोर ब्रांच के लिए मेरा एक्सपेंस बजट, ये देखिए अभी सीधा मुझे फिगर लिखनी है कि बैंगलोर लेवल के मेरा जो एक्सपेंस बजट है दैट इज गोइंग टू बी say 2 crores rupees, 20 लाख है, सॉरी, I'll say it is 2 crores rupees। एंड मैं इनकम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंगलोर ब्रांच से, मेरा जो इनकम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो अंदाज से 5 करोड़ रुपया है, राइट? सो इस तरह से मैं मेरा एक्सपेंस और इनकम बजट मेरा यहाँ पे दे रहा हूँ। सेम में मुंबई से मेरे एक्सपेक्टेशन थोड़े ज्यादा है, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि 5 करोड़ का मेरा एक्सपेंस बजट है, और मैं जो इनकम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मुंबई से वो 20 करोड़ का है। सेम में पुणे से अगर मैं चाहूँ तो से मुझे जो एक्सपेंस बजट है वो 3.5 करोड़ का है, और जो मैं इनकम चाह रहा हूँ पुणे से वो 12 करोड़ का है, राइट? सो इस तरह से मैं ग्रुप लेवल, लेजर लेवल और कॉस्ट सेंटर लेवल पे मेरा बजट डिफाइन कर सकता हूँ। अभी ये मेरा बजट का नाम है एक्सपेंसेस बजट, और मे बी आई से मेरा कंपनी का नाम RIL है, सो आई से RIL एक्सपेंसेस बजट। whatever you want, name you want to give, you can just give the name। ये तो हो गया एक पीरियड के लिए। अभी मुझे दूसरे पीरियड के लिए भी स्पेंड ये करना है तो आई कैन डिफाइन, सपोज मुझे क्वार्टरली भी कुछ करना है तो आई कैन डिफाइन इट क्वार्टरली एज वेल, इन केस यू वांट टू डू समथिंग लाइक दैट। सो एक ही बजट के अंदर मैं मल्टीपल पीरियड का बजट सेट कर सकता हूँ। या तो ये तो मैंने अभी एक बजट क्रिएट किया, अगर मुझे दूसरा बजट क्रिएट करना है, मे बी माई रेवेन्यू बजट, सो आई कैन डू दैट। सो आपको सिर्फ नाम देना है और उसके अंदर उसको डिफाइन करना है कि आपको ये डिफरेंट लेवल्स ऑफ बजट से ये आपको कैसे डिफाइन करना है, वहां पे आप आपको कैसे अमाउंट अलोकेशन करना है, ये आप यहाँ से अच्छी तरह से कर सकते हो। फाइन, वी विल बी मूविंग अहेड एंड विल गो टू सिनेरियोज। अभी बजट्स और सिनेरियो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे बजट आप क्रिएट करते हो तो आप वो एक बेसिकली एक सिनारियो ही क्रिएट कर रहे हो, जो कि आपको पता नहीं कि कैसे क्या होने वाला है। आपने सिर्फ एक बजट बनाया है कि मेरा इतना मैं स्पेंडिंग कर सकता हूँ, लेकिन अगर आपको सिनारियो क्रिएट करना है कि एक एस्टिमेट करना है, फॉर एग्जांपल सिनारियो आपको कभी काम में आता है, कभी कभार आपको प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना होता है, ओके, आपको लोन की रिक्वायरमेंट होती है, और लोन की रिक्वायरमेंट होती है तो आपको आप बैंक को अप्रोच करते हो। व्हेन यू अप्रोच टू बैंक, द बैंक आस्क यू the bank ask you to provide a project detail, right? से आपके प्रोजेक्ट का रिपोर्ट दे दो कि आपका एस्टिमेट आपने ये कैसा बजट, सॉरी, ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करने वाले हो, और ये आपका ये जो प्रोजेक्ट है ये कभी
एग्जीक्यूट होगा, राइट? मतलब इन ऑपरेशन कभी आने वाला है, इन ऑपरेशन आने के बाद आप कितना इसमें से इनकम एक्सपेक्ट कर रहे हो, कितना एक्सपेंस आप इसमें एस्टिमेट कर रहे हो कि आपका इतना एक्सपेंस होगा, इतना इनकम होगा, तो मेरा प्रॉफिट जनरेशन इतना होगा। तो ये एक क्या होता है, एस्टिमेट करते वाले सिनारियो क्रिएट करते हो। ये सिनारियो ही यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हो अगर आपको मैनेजमेंट को दिखाना है कि सर अपना अभी परफॉर्मेंस ऐसा है और 6 महीने बाद हमें ऐसा परफॉर्मेंस चाहिए, तो इसके लिए हमें क्या स्टेप्स लेना चाहिए। सो दिस इज माय सिनारियो। तो यहाँ पे आपको सिनारियो क्रिएट करना होता है। I'll say सिनारियो 1। इसमें क्या पूछा जाता है कि इंक्लूड एक्चुअल। एक्चुअल यानी क्या है? सिनारियो में बेसिकली लेट मी एक्सप्लेन यू, सिनारियो में आपको सिर्फ ऑप्शनल वाउचर्स यूज करने होते हैं। अभी फिर से मैं आपको याद दिला दूं ऑप्शनल वाउचर्स क्या होते हैं। तो आपने जब F11 आपको अकाउंटिंग फीचर के बारे में बता रहा था, ये देखिए F11 अकाउंटिंग फीचर में आपको मैं बता रहा था बजट एंड सिनारियो मैनेजमेंट के। अगर आपको याद आया रहेगा स्क्रीन देख के, तो ये देख लीजिए आपको यूज रिवर्सिंग जर्नल एंड ऑप्शनल वाउचर के बारे में मैंने बताया था। ऑप्शनल वाउचर के मैंने एग्जांपल भी दिए थे आपको कि अगर आप कोई भी वाउचर को ऑप्शनल करके टैग करते हो तो वो आपके फाइनल अकाउंट्स या तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अफेक्ट नहीं करता, राइट? जो भी ऑप्शनल वाउचर है आपको आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अफेक्ट नहीं करता। सो फॉर एग्जांपल मैं कोई भी पेमेंट वाउचर बनाऊं और उसको ऑप्शनल करके टैग कर लूं, तो मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में से वो फिगर माइनस नहीं होगी। माइनस या प्लस जैसे भी केस हो, पेमेंट है तो माइनस होनी चाहिए, मतलब सॉरी कैश एंड बैंक बुक में कह रहा हूँ, नॉट लेजर अकाउंट। तो वो डिपेंडिंग ऑन विच लेजर रिपोर्ट यू आर लुकिंग एट, तो आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को वो अफेक्ट नहीं करने वाला कोई भी ऑप्शनल वाउचर। आपको मैंने एक एग्जांपल बताया था, सेल्स को अगर आप ऑप्शनल करते हो तो द सेल्स बिकम द प्रोफार्मा इनवॉइस। या तो आप सेल्स ऑर्डर को ऑप्शनल करते हो, सो देन दैट सेल्स ऑर्डर बिकम्स योर कोटेशन। सो इस तरीके से आप इसको डिफाइन करते हो। तो इसमें अगर आपको एक्चुअल इंक्लूड करना है, यानी एक्चुअल प्लस मेरा ऑप्शनल, ये दोनों मिला के मुझे सिनारियो दिखना चाहिए, तो आई कैन से include actuals and exclude foreign gain loss calculation। अभी हम इतना डीप में नहीं जाते। या तो क्या, इससे क्या होगा, शायद आप आउट ऑफ ट्रैक हो सकते हो कि अब ये फॉरेन गेन लॉस कैलकुलेशन क्या है। यस, यहाँ पे काफी सारे अकाउंटेंट इंटेलेक्चुअल पीपल है या सभी वैसे इंटेलेक्चुअल है, लेकिन ये चीज की जो जानकारी रखते हैं फॉरेक्स गेन एंड लॉस कैलकुलेशन की, उनको ये समझ में आएगा कि एक्सक्लूड क्या है, फॉरेक्स गेन लॉस कैलकुलेशन क्या है, इन्वेंट्री ट्रैकिंग कैलकुलेशन क्या है। तो फिलहाल हम वो ये जो तो 2 पॉइंट पे ध्यान न देते हुए यहाँ पे इंक्लूड क्या करना है ये हम डिफाइन कर सकते हैं। मुझे इंक्लूड करना है मेरे सारे सेल्स वाउचर। देखिए आपको सामने दिखाई दे रहा है ऑप्शनल वाउचर, राइट? सेल्स ऑप्शनल मैंने सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पे सेल्स का जो ऑप्शनल था ये मुझे इंक्लूड करना है, परचेस का मुझे ऑप्शनल इंक्लूड करना है, पेमेंट का मुझे ऑप्शनल इंक्लूड करना है, बाद में रिसिप्ट का भी ऑप्शनल मुझे इंक्लूड करना है, जर्नल का ऑप्शनल इंक्लूड करना है। इस तरीके से मेरे 5 जो वाउचर है यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर ली है। तो अभी आपके मन में ख्याल आ गया, अरे हमने इंक्लूड तो कर लिया, अभी एक्सक्लूड क्या करना है, बराबर? जब मैंने इंक्लूड कर लिए तो इसमें एक्सक्लूड क्या करना है? और बाकी जो नहीं चूज किए वो तो बाय डिफॉल्ट ही एक्सक्लूडेड है। तो ये आपको ऑप्शन इसके लिए दिया गया हुआ है। अगर यहाँ पे काफी सारे जो अकाउंटेंट्स या तो टैली यूजर्स है, उनको पता है कि जैसे हम ग्रुप के अंदर ग्रुप बना सकते हैं, कॉस्ट सेंटर के अंदर कॉस्ट सेंटर बना सकते हैं, उसी तरह वाउचर टाइप के अंदर हम और वाउचर टाइप, सब वाउचर टाइप बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप पेमेंट की बात करो, ये जो पेमेंट वाउचर है, ये पेमेंट वाउचर के अंदर अगर मुझे क्रिएट करना है कि मेरा बैंक पेमेंट वाउचर अलग करना है और कैश पेमेंट वाउचर मुझे अलग करना है, तो आई कैन डू दैट। तो इससे क्या होगा, मेरा पेमेंट वाउचर एक प्राइमरी वाउचर टाइप रहेगा, और जो पेमेंट बैंक पेमेंट वाउचर है और कैश पेमेंट वाउचर है, ये मेरे सब वाउचर टाइप्स होंगे ऑफ माय पेमेंट वाउचर। सो इससे क्या होने वाला है, अगर मैं सारे पेमेंट वाउचर, मैं कहता हूँ कि पेमेंट वाउचर को इंक्लूड करो, यानी सारे पेमेंट वाउचर इंक्लूड हो गए, लेकिन इसमें से मुझे कैश पेमेंट वाउचर्स एक्सक्लूड करना है, यानी जो सब टाइप एक्सक्लूड करना है, तो आई कैन डू दैट वेरी वेल ओवर हियर। यहाँ से मैं कर सकता हूँ। जैसे अगर आप एज्यूम कीजिए यहाँ पे कैश पेमेंट वाउचर है और बैंक पेमेंट, सो मुझे इसमें सिर्फ पेमेंट वाउचर इंक्लूड करना है और बैंक पेमेंट वाउचर इंक्लूड करना है, तो मैं पेमेंट लिखता हूँ तो सारे पेमेंट वाउचर इंक्लूड हो गए। उसमें से मुझे कैश पेमेंट वाउचर एक्सक्लूड करना है,
तो मैं एक्सक्लूड कर सकता हूँ। आई होप यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट, वी विल मूव अहेड। सो इस तरह से आप सिनारियो क्रिएट कर सकते हो। सिनारियो और बजट कहाँ पे यूज होता है, सिर्फ मैं आपको ब्रीफ बताता हूँ, नहीं तो आपको शायद समझ में नहीं आ रहे। इन्होंने, अरुण जी ने तो मुझे सारी इंफॉर्मेशन बताई कि इसमें बजट कैसे क्रिएट करते हैं, सिनारियो कैसे क्रिएट करते हैं, लेकिन वो यूज कहाँ पे होता है। तो आप यूज कोई भी मोस्टली ग्रुप लेवल रिपोर्टिंग है वहां पे आप यूज कर सकते हो। जैसे डिस्प्ले है, ट्रायल बैलेंस, ये देखिए डिस्प्ले ट्रायल बैलेंस है, इसमें मैं यहाँ पे न्यू कॉलम करके ऑप्शन है, ये न्यू कॉलम ऑप्शन में जाके यहाँ पे चूज कर सकता हूँ कि मुझे कौन सा कॉलम ऐड करना है। ये देखिए टाइप ऑफ वैल्यू टू शो, मुझे आरआईएल एक्सपेंस बजट देखना है या सिनारियो वन। दिख रहा है आपको, ये बजट था और ये सिनारियो था, तो ये मैंने बजट चूज कर लिया। इस तरीके से मुझे यहाँ पे बजट दिखाई दे रहा है, राइट। ऑफ कोर्स उसमें कॉस्ट सेंटर बजट था, प्योरली लेजर बजट नहीं था, इसके लिए मुझे वो लेजर बजट नहीं दिखाई दे रहा है। सॉरी, तो आप अगर कॉस्ट सेंटर में जाते हो, जैसे डिस्प्ले, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, कॉस्ट सेंटर, कैटेगरी रिपोर्ट, और यहाँ पे मैं देखना चाहूँ तो मुझे ये बजट मिल सकता है, आरआईएल एक्सपेंस बजट, ये देखिए, राइट। अगर आपको वराइज देखना है तो आप वराइज भी देख सकते हैं यहाँ पे, ये वराइज वाला बजट भी आपको मिल सकता है। ओके, ये हो गया वराइज, ये हो गया एक्चुअल, और ये हो गया बजट। ये देखिए ऊपर आपका जो हेडिंग है वो देख लीजिए, आरआईएल एक्सपेंस बजट एक्चुअल, यानी ये बजटेड फिगर, ये एक्चुअल फिगर, और जो लास्ट कॉलम है वो वराइज है, यानी डिफरेंस है। इस तरीके से आप बजट यूज कर सकते हो, इस तरीके से आप सिनारियो भी यूज कर सकते हो। सिनारियो इज नथिंग डिफरेंट देन व्हाट यू आर सीइंग हियर। सेम उसी तरीके से आपका सिनारियो भी वर्क होता है। ऑल्ट सी न्यू कॉलम करके मैं यहाँ पे जो टाइप ऑफ वैल्यू टू शो में सिनारियो वन कहता हूँ, तो मुझे सिनारियो दिखाई दे रहा है। अभी क्या हमने एक्चुअल इंक्लूड किए, ऑप्शनल वाउचर कोई भी हमने एंट्री नहीं की है, इसके लिए यहाँ पे ऑप्शनल वाउचर की एंट्रीज मुझे दिखाई नहीं दे रही है, राइट। आई होप it's clear to you what do you mean by budgets and scenario. We will be moving ahead with accounts info and currencies. Currency के बारे में भी मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन, आपको अच्छी तरह से ये जानकारी दी है। मेरे ख्याल से F11 फीचर जब भी हम क्रिएट कर रहे थे या तो हम डिफाइन कर रहे थे, उसी वक्त मैंने आपको बताया था कि you have the one base currency, that is the rupees, INR is your base currency, then pound is the foreign currency you have created, dollar is the foreign currency what you have created. तो ये देखिए यहाँ पे हमने इस तरह से क्रिएट किए थे। डॉलर सिंबल हमने स्पेसिफाई किया था, शिफ्ट और 4 बटन प्रेस करके डॉलर हमने चूज किया था, यहाँ पे उसका नाम दे दिया। उसके काफी सारे पैरामीटर्स हैं, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस फॉर अमाउंट इन वर्ड्स, सफिक्स, सिंबल टू अमाउंट, वर्ड रिप्रेजेंटेटिव अमाउंट आफ्टर, ये काफी सारे चीजें हमने यहाँ पे डिफाइन की थी। अगर आपको शो अमाउंट इन मिलियंस देखना है, मिलियंस के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी थी। मिलियंस यानी एक जो बेसिकली आप जो नंबरिंग लिखते हो उसमें जो आपकी कॉमा स्टाइलिंग होती है, ये वो बेसिकली डिफरेंट होती है। हमारी जो इंडियन स्टाइल है, वी ऑलवेज कैलकुलेटेड इन लैक्स एंड क्रोर्स, यानी कि आपका क्रोर्स या लाख का देखोगे तो पहले हमारा 2 डिजिट के बाद एक कॉमा आता है, बाद में एवरी 3 डिजिट के बाद कॉमा आता है। लेकिन जो मिलियंस का जो काउंटिंग होता है, इट इज ऑलवेज आफ्टर एवरी 3 डिजिट यू कैन फाइंड कॉमा। So they don't call it as 1 lakh rupees. I mean, who are operating in say millions or billions, they call it as a 100,000. उनको 1 lakh कहना है, they say it 100,000. उनको 10 लाख कहना है तो they call it as 1 million. So 10 लाख यानी 1 million, right? So this is the way you can call millions and in lakhs rupees. I mean, this is basically is the difference of millions and lakhs crore system. So इस तरीके से मुझे अगर और एक करेंसी क्रिएट करनी है, फॉर एग्जांपल dirham, so I'll say AED is my symbol, and Arab Emirates dirham, right? इस तरीके से आप दिरहम यानी जो आपका
यूनाइटेड अरब यानी दुबई में या तो अबू धाबी, ये सारे 7 बेसिकली स्टेट्स है वहां पे, 7 इमिरेट्स है, इनका मिलके एक कंट्री बन चुका है। तो ये बेसिकली एडी, अरब इमिरेट्स दिनाम, ये वहां पे यूज होता है। इनका जो पोर्शन है, दैट इज पैसे का पोर्शन है, उसको हम फिल्स कहते हैं, FILS, फिल्स, राइट। सो दिस इज द वे यू कैन क्रिएट अ न्यू करेंसी हियर। सेम वे आपको चाइनीज युआन क्रिएट करना है तो यू कैन क्रिएट चाइनीज युआन। इस तरीके से आप अभी फॉरेन करेंसी क्रिएट करके इसको यूज भी कर सकते हो। इसको कैसे यूज करना है ये भी मैंने आपको बताया था, लेकिन फिर से अगर आपको थोड़ा नॉलेज रिफ्रेश करना है, आपको लग रहा है कि ये मेरा रिवीजन हो जाएगा, तो मैं आपको एक एंट्री इसमें बता देता हूँ। मैं वाउचर एंट्री में जाता हूँ। एफआईट इज फॉर सेल्स। ये जो आपको राइट साइड में आपको काफी सारे वाउचर टाइप्स दिख रहे हैं, इसमें से मैं सेल्स चूज करता हूँ, और सेल्स चूज करके यहाँ पे मैं पार्टी नेम पे आ रहा हूँ। पार्टी नेम पे अगर मुझे एक नया पार्टी क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल HIJ ओवरसीज, मैं सिर्फ जानकारी लेके इसको ओवरसीज कस्टमर कहता हूँ, क्योंकि हमें सिलेक्शन के लिए ये आसानी हो जाए। सपोज ये इनका ये कंपनी का नाम है HIJ ओवरसीज कस्टमर लिमिटेड। ये मैं ऑलवेज प्लेस करता हूँ सन्ड्री डेटर्स, मोस्टली पीओ बॉक्स पे बुक होता है, तो पीओ बॉक्स 1234, I'll say Dubai, and I'll say UAE। इस तरीके से मैं वो डिफाइन करता हूँ। यहाँ पे कंट्री चूज करता हूँ, यूनाइटेड, यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, शायद वो लिस्टेड नहीं है। Emirates, no, so you can create Arab Emirates, ओके, यूनाइटेड अरब इमिरेट्स। एंड इनकेस आपको बैंक डिटेल्स प्रोवाइड करना है, पैन आईडी तो आएगा नहीं यहाँ पे। सेव कर लेता हूँ मैं इंफॉर्मेशन। और अभी ये पर्टिकुलर पार्टी को मुझे सेल करना है, तो मुझे प्राइस लेवल भी नहीं एप्लीकेट करनी, मैं सीधा स्टॉक आइटम पे आता हूँ। स्टॉक आइटम पे आके मैंने स्पेस बार प्रेस करने के बाद मुझे स्टॉक आइटम की लिस्ट मेरे सामने दिखाई दे रही है। राइट साइड में आप जो टेबल देख रहे हो, यहाँ पे आपका टाइटल दिख रहा है टेबल का, लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम। इसमें से मैं कोई भी एक आइटम चूज कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास LG LED 40 जो 12 नंबर से, इसमें से मैं सपोज 6 बेचना चाहता हूँ। ये डिस्क्रिप्शन हो गया। ट्रैकिंग नंबर और ऑर्डर नंबर फिलहाल मैं यूज नहीं कर रहा, क्योंकि वी विल बी लर्निंग इन द दिस सेशन इटसेल्फ व्हेन वी स्टार्ट विद द डेटा एंट्री। गोडाउन में चूज कर रहा हूँ कि कौन से गोडाउन से मुझे ये सेल करना है, तो ये मैं गोडाउन चूज कर लेता हूँ। से मुंबई में 6 है, तो मुंबई से मैं 3 बेच रहा हूँ, और इसका वैल्यू अभी सपोज 50,000 रुपीज है, लेकिन मैं सेल करना था चाहता हूँ से $1,200, राइट। तो जैसे मैं डॉलर में सेल कर रहा हूँ, सबसे पहले तो डेट क्या लिया है हमने, 20 मई। सो आई जस्ट टेक टूडेज डेट, दैट इज 25 मई को मैं सेल कर रहा हूँ $1,200, एंड इट आस्क्ड मी व्हाट इज द एक्सचेंज रेट, यानी आज का डॉलर का रेट क्या है। तो आज का डॉलर का रेट फॉर एग्जांपल 74 रुपीज है, तो मैं 74 रुपीज यहाँ पे लिख देता हूँ, यानी 74 रुपीज पर डॉलर के हिसाब से मैं बेच रहा हूँ। सॉरी, we'll take a little more. So we want to always show, we like to show the profit instead of loss. So maybe I'll say 77 rupees आज सपोज डॉलर का रेट है, तो आई कैन पुट इट एज अ डॉलर रेट एज 77। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली इट हैज गॉट कन्वर्टेड टू इंडियन रुपीज, इट हैज नॉट केप्ट इन डॉलर ओनली। आप नीचे भी देख सकते हो, यहाँ पे देखिए $3,600 एट द रेट ऑफ 77 पर डॉलर इज इक्वल टू 2,77,200। सेम वे अगर मुझे दूसरा ये सैमसंग LED 55 बेचना है और एक्सपोर्ट करना है रादर, तो मैं इसको कहता हूँ कि मुंबई से मैंने 5 जो टीवीज है मैं बेचना चाहता हूँ, इसकी वैल्यू है $1,500। तो यही सेम रेट से, क्योंकि एक ही इनवॉइस में मेरा आई कैन नॉट हैव 2 डिफरेंट रेट्स, एक इनवॉइस में मैं 2 डिफरेंट रेट नहीं डाल सकता, इसके लिए सेम रेट से मेरा वो वैल्यू में डिफाइन कर रहा हूँ।
और इस तरीके से मैं यहाँ पे जीएसटी तो नहीं लगा रहा हूँ बिकॉज इट्स एक्सपोर्ट सेल, इसके लिए इसमें मैं जीएसटी नहीं लगा रहा हूँ ना, तो मैं ई वे बिल क्रिएट कर रहा हूँ और ये इंफॉर्मेशन को सेव करता। Okay, I think export को GST लगता है. I'm not, I mean, quite sure about it. Maybe the accountants who are dealing in export here can guide me. But anyway, that's not going to impact us what we are really, or rather, I'm going to show you here. ये देखिए, इस तरीके से मैंने सेल्स का एक वाउचर बना लिया। अगर मैं डिस्प्ले में जाऊं, अकाउंट बुक्स में जाऊं, सेल्स रजिस्टर में जाऊं, तो आपको ये देखिए ये डॉलर वाली इनवॉइस भी यहाँ पे लिस्टेड है, HIJ ओवरसीज कस्टमर प्राइवेट लिमिटेड या तो लिमिटेड। और मैं एफ्टर में जाके यहाँ पे चेक करना चाहूँ कि मुझे सिर्फ फॉरेक्स ट्रांजैक्शन ही दिखाए, तो मैं यहाँ पे सिर्फ फॉरेक्स वाला ट्रांजैक्शन ही देख सकता हूँ जो आपको डॉलर्स में लिस्टिंग आ गया। आप देख लीजिए $11,100 आपको अमाउंट फिगर में दिखाई दे रहा है। सेम वे अगर मुझे सारी इंफॉर्मेशन चाहिए, यानी इंडियन रुपीज वाली भी और डॉलर वाली भी, लेकिन इसमें मैं फॉरेक्स डिटेल देखना चाहता हूँ, फॉरेक्स डिटेल भी मैं देख सकता हूँ शायद मैं इस तरीके से, सॉरी, शिफ्ट एंटर करके मैं इसका फॉरेक्स डिटेल देख सकता हूँ कि ये कौन से वैल्यू पे या तो कौन से रेट पे मैंने ये पर्टिकुलर इनवॉइस एग्जीक्यूट किया है। इसका इफेक्ट और कहाँ पे आता है हम देखते हैं। अगर मैं बैलेंस शीट में जाऊं तो ये देखिए आपको क्या आ रहा है यहाँ पे, अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन एंड लॉस। अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन एंड लॉस यानी इसका मतलब क्या होता है कि आपको जो भी आपने फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन किए हैं उसमें आपको कुछ तो गेन हुआ है या तो लॉस हुआ है, राइट। तो बेसिकली ये मेरे ख्याल से लॉस, सॉरी ये तो गेन है। आपको गेन हुआ है 22,200 रुपये का, राइट। 22,200 रुपये आपने इसमें ज्यादा एक्स्ट्रा कमा लिए हैं ड्यू टू फॉरेन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन। क्यों, वो हम देखते हैं। अगर हम परचेज देखें अपना डिस्प्ले अकाउंट बुक्स एंड परचेज रजिस्टर, तो ये जो पहले हमारा जो परचेस था ये हमने $300 में परचेस किया था। ये हमने LG LED 40 इंच था जो $300 में परचेस किया था और हमने बेचा है $1,000 में, सॉरी $300 में बेच गए। ओके, वो तो प्रॉफिट का मामला हो गया, लेकिन इसको बुक कितने रेट से किया था? 75 के हिसाब से, यानी 75 रुपया पर डॉलर हमने ये खरीद लिए थे, राइट। और यानी वो 75 का रेट था और जब अभी हमने सेल किया है तो ये मेरा रेट है 77 रुपीज, यानी 2 रुपीज पर डॉलर मैंने मुनाफा कमाया है, प्रॉफिट कमाया है। 2 रुपीज पर डॉलर मैंने प्रॉफिट कमाया। तो आप देख सकते हैं अगर मेरी इनवॉइस $11,100 है, $11,100 है, तो 2 रुपया, फिर से मैं समझा के कहता हूँ, मैंने परचेस किया था तभी 75 रुपीज पर डॉलर का रेट था, और जब भी मैंने सेल किया है उस वक्त 77 रुपीज पर डॉलर का रेट है, यानी 2 रुपए का मुझे फॉरेन एक्सचेंज में मुनाफा हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, वो मैं बुक करा हूं यहाँ पे 22,200 रुपया, दैट इज 11,100 इंटू 2 रुपीज इज इक्वल टू 22,200 का हमें प्रॉफिट हमारा हुआ है। और ये इसको हम कहते हैं नोशनल प्रॉफिट एंड गेन, प्रॉफिट और लॉस, इसको हम क्या कहते हैं? नोशनल, क्योंकि अभी तक हमने इसको बुक नहीं किया है, क्योंकि हमारा ट्रांजैक्शन अभी फिनिश नहीं हुआ है, हमने सेल किया है, ये पैसा हमें अभी तक मिला नहीं, रियलाइज नहीं हुआ है। तो अगर आपको पैसा रियलाइज होता है, फॉर एग्जांपल आपका जो कस्टमर है वो आपको पेमेंट कर देता है, FI इज द पेमेंट, सपोज सेम डे उन्होंने पेमेंट कर दिया, वी अज्यूम दैट सेम रेट से उन्होंने पेमेंट कर लिया, तो ये जो HIJ ओवरसीज कस्टमर है इनका $11,100 आना था, वो मैं लिख रहा हूँ 77 के हिसाब से इतना मुझे आना था, इतना आ चुका है डॉलर के हिसाब से। Oh, sorry, yeah, I am making mistake. It's a receipt. Sorry. I went to payment because most of the time we do first transaction as a purchase, and that's the reason I went on to payment. So I'll just write 11,100 is the receipt. ये receipt में मैं record कर रहा हूँ
8,54,700। और इस तरीके से देखिए मेरा बिल वाइज जो था वो डॉलर में मेंटेन हो रहा है और डॉलर में वो एडजस्ट हो चुका है। एंड डेबिट टू माई बैंक अकाउंट, कौन से बैंक अकाउंट में मैं इसको रिसीव कर रहा हूँ वो मैं बैंक अकाउंट का नाम यहाँ पे टाइप करता हूँ। और देखिए यहाँ पे ये कौन से मोड से आया है, तो मैं कहता हूँ अदर्स, जो भी है उन्होंने टीटी किया या तो और कोई मेथड से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर से किया है, तो आप चूज कर सकते हो एंड यू कैन सेव दिस इंफॉर्मेशन। ध्यान में रहिए, मैं आपको फिर से वो लेजर दिखाता हूँ, डिस्प्ले अकाउंट बुक्स लेजर HIJ ओवरसीज कस्टमर लिमिटेड। ये देखिए यहाँ पे सेल किया था 8,54,700 और रिसीव 8,50,000। चलिए इसको अजूम करके हम अभी इसका डेट चेंज कर दे, इसको सपोज 26/5 यानी कल के डेट पे डाल देते हैं और इसका रेट भी चेंज करते हैं। इसको कहते हैं कि आज का रेट जो कल का रेट है शायद थोड़ा कम हो गया, या तो इसको और 1 रुपये से बढ़ा देते हैं तो कैलकुलेशन के लिए इजी होगा। 78 रुपया इसका रेट हो गया। ये $1,100 जो जो परफेक्टली आ गए। सो इज इक्वल टू 8,65,800। इस हिसाब से मुझे पैसा मिला है 78 रुपया पर डॉलर, यानी 78 रुपीज पर डॉलर हमें पैसा मिला है। ये देखिए आपको यहाँ पे अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन एंड लॉस यहाँ पे बता रहा है। 26 तारीख को आप देखो तो आपको यही अभी जो गेन एंड लॉस हो अभी 11,100 रुपया यानी 1 रुपया पे दिखा रहा है। वो कैसे हुआ वो हम यहाँ पे देख सकते हैं। बेसिकली अभी ये आपका जो ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ है, ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने से क्या हुआ है, पहले 2 रुपया था क्योंकि वो परचेस के रेट से कंपेयर कर रहा था, राइट। आज उसने क्या किया है कि जो अपना सेल्स था वो 77 से था। और ये जो मैंने पहले, अगर आपको याद रहेगा, मैंने वर्ड यूज किया था इन बैलेंस शीट, दैट इज माय नोशनल प्रॉफिट एंड गेन लॉस। नोशनल यानी एक इमेजिनरी आप कह सकते हो, या तो बिकॉज माई कंप्लीट ट्रांजेक्शन इज नॉट ओवर। मेरा ट्रांजेक्शन कभी कंप्लीट हुआ है जिस दिन मुझे पैसा मिला उस दिन मेरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। अभी मेरा कुछ भी ये कस्टमर के साथ लेना देना नहीं है। तो उस दिन मेरा जो रेट था वो 78 रुपीज पर डॉलर था और 78 रुपीज पर डॉलर के होने की वजह से 11,100 मतलब 1 रुपया पर डॉलर मुझे प्रॉफिट हुआ है। वो 11,100 रुपया यहाँ पे प्रॉफिट बुक हो चुका है, नोशनली बुक हो चुका है, जो आपको ट्रांसफर करना है, जो आपको ट्रांसफर करना है आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये देखिए ये जो आपको प्रॉफिट हुआ है ये आपको ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्लीज पे अटेंशन हाउ आई एम गोइंग टू ट्रांसफर दिस टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में मैं ट्रांसफर कैसे कर सकता हूँ वो आप देख लीजिए। इसके लिए सबसे पहले तो मुझे एक वाउचर टाइप बनाना पड़ेगा, या तो आप जनरल वाउचर टाइप भी यूज कर सकते हो, लेकिन इनकेस आप अगर ये सारी इंफॉर्मेशन अलग से रखना चाहते हो तो आप इसको एक नए वाउचर टाइप में डाल दीजिए। अकाउंट्स इन्फो में आपको वाउचर टाइप का ऑप्शन है। मैं फिर से कहता हूँ अकाउंट्स इन्फो में वाउचर टाइप का ऑप्शन है, इसमें मैं क्रिएट करता हूँ वाउचर। मैं इसको कहता हूँ फॉरेक्स जर्नल यानी फॉरेक्स करेंसी वाला जर्नल, राइट। फॉरेक्स जर्नल विच इज अ टाइप ऑफ जर्नल अकाउंट, यानी मेरा जो जर्नल वाउचर है ये जर्नल वाउचर में मैं इसको बना रहा हूँ। इसका जो नंबरिंग मेथड है ये हम पढ़ने वाले हैं। अभी हमारा नेक्स्ट सेक्शन वाउचर टाइप है तो इसमें मैं अभी ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर रहा हूँ। आई एम जस्ट सिलेक्टिंग ऑटोमेटिक, आई एम जस्ट सेविंग दिस इंफॉर्मेशन बाय प्रेसिंग इंटर। यहाँ पे मैं एक क्लास क्रिएट करता हूँ फॉरेक्स गेन लॉस। ये मेरा एक मैंने क्लास क्रिएट किया, इसको हम कहते हैं वाउचर क्लास। इसको क्या कहते हैं वाउचर क्लास। अगर आपको याद रहेगा एफएलए में मैंने आपको कॉस्ट सेंटर क्लास बताया था, ये हमने कॉस्ट सेंटर क्लास क्रिएट किया था। सेम में मैं एक वाउचर का क्लास क्रिएट कर सकता हूँ। वाउचर का क्लास यानी टेम्पलेट, एक बेसिकली इसको हम टेम्पलेट कहते हैं। मैंने एक टेम्पलेट का एग्जांपल भी दिया था। आपने अगर एक्सेल में अगर कोई टेम्पलेट क्रिएट कर रहे हो तो सेम में इसमें आप टेम्पलेट क्रिएट कर सकते हो टैली में। तो ये देखिए ऊपर आपको इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है कि यूज क्लास फॉर फॉरेक्स गेन लॉस एडजस्टमेंट। क्या ये जो आप क्लास बना रहे हैं ये फॉरेक्स गेन लॉस एडजस्टमेंट के लिए बना रहे हैं?
है तो आप इसको यस कहिए, तो मैं इसको यस कहता हूं। अगर आप इसको फॉरेक्स गेन एंड लॉस एडजस्टमेंट के लिए बना रहे हैं तो इसमें आपका लेजर कौन सा होना चाहिए? तो इसमें मैं लेजर चूज करता हूँ। बेसिकली मुझे एक लेजर बनाना पड़ेगा कि ये मेरे कौन से लेजर को अफेक्ट करना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। जैसे आप इनकम और एक्सपेंस का लेजर बनाते हो, उसी तरह यहाँ पे आपको एक लेजर बनाना है। ऑल्ट सी प्रेस करके प्रॉफिट स्ट्रोक लॉस ऑन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, यानी फॉरेन करेंसी के ट्रांजैक्शन पे आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ है, वो आप लेजर का नाम यहाँ पे डिफाइन करते हो। इसको मैं कभी भी ऑप्टिमिस्टिक होने की वजह से मैं उसको देखता हूँ कि ये मेरा प्रॉफिट ही रहने वाला है, तो इसको मैं इनकम के अंडर ग्रुपिंग करता हूँ, ना कि एक्सपेंस के अंडर। अगर लॉस है तो आप एक्सपेंस के अंडर ग्रुप कर सकते हैं, आपको लग रहा है ये इनकम है तो आप इसको इनकम में ग्रुपिंग कर सकते हैं। इस पे जीएसटी एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल, टीडीएस नॉट एप्लीकेबल, ये सब मैं नॉट एप्लीकेबल डिफाइन करके आगे बढ़ता हूँ। इसको सेव कर लेता हूँ ये इंफॉर्मेशन, राइट। तो इस तरीके से मैं एक नया वाउचर टाइप बनाया और यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। ये देखिए, ये वाउचर टाइप जर्नल। अभी आपको याद है कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था, जब भी मैं आपको सिनारियो मैनेजमेंट की बात कर रहा था, उस वक्त मैंने कहा था कि इंक्लूड दिस वाउचर और एक्सक्लूड दिस वाउचर, ऐसे दो ऑप्शन टैली ने क्यों दिए। तो इंक्लूड में अगर मैं जर्नल करूं और एक्सक्लूड में कहूं फॉरेन गेस एंड लॉस, उसको एक्सक्लूड कर दो, तो ये इसकी जो वैल्यूज है इसको वो एक्सक्लूड करने वाला है। सो दिस इज हाउ द सम वाउचर टाइप you can create, you can define, you can use in your reporting the way you want। और the tally जैसे आपको इंफॉर्मेशन पूछता है तो ये इंफॉर्मेशन आपको पहले समझना चाहिए कि ये किसके लिए इंफॉर्मेशन पूछी जा रही है, या तो ये इंफॉर्मेशन मैं किस तरह यूज कर सकता हूँ मेरे रिपोर्टिंग के लिए। और ये एक तरीका है, हमने अब एक जर्नल वाउचर क्रिएट किया, उसको नाम दिया फॉरेक्स जर्नल। अभी अगर आपको डिफाइन मतलब देखना है कि आपने कितने वाउचर टाइप क्रिएट किए हैं और ये वाउचर टाइप क्रिएट किए हुए उसमें प्राइमरी कितने हैं और सब वाउचर टाइप कितने हैं, तो बेस्ट एग्जांपल इज यू कैन गो टू इधर डिस्प्ले लिस्ट ऑफ अकाउंट्स, ये एक तरीका हो गया। या तो डिस्प्ले में स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आपको स्टैटिस्टिक्स में ऑप्शन आएगा वाउचर टाइप्स। ये वाउचर टाइप में आप देखोगे तो सारे जो प्राइमरी वाउचर टाइप है, मैं रिपीट करता हूँ, प्राइमरी यानी जो टैली ने क्रिएट किए हुए वाउचर है वो आपको बोल्ड लेटर्स में दिखाई देंगे। आपको बोल्ड यानी जो जाड़े अक्षर में यहाँ पे आपको दिखाई देंगे उसको, और जो आपने आपने क्रिएट किए हैं वो आपको थिन लेटर्स यानी बारीक अक्षरों में आपको दिखाई देंगे। तो आप इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कौन सा वाउचर टाइप है। अभी इसमें अगर मुझे ऑप्शन देखना है, सॉर्ट बाय डिफॉल्ट वाउचर, तो देखिए डिफॉल्ट वाउचर और उसके नीचे कौन सा वाउचर, यानी जर्नल में मेरे कितने वाउचर टाइप है ये मुझे बताएगा। जर्नल में फॉरेक्स जर्नल है और जर्नल, ये इस तरीके से मुझे इंफॉर्मेशन अगर देखनी है तो मैं इस तरीके से भी देख सकता हूँ, राइट। So anyway, that was not our part, but I thought when I was just trying to impart that knowledge, so at that time I thought, I need to provide this information as well कि voucher type यहाँ पे कैसे important role play करता है। I'll go back to my uh, where we had started from, where we navigated to create the voucher type। तो ये देखिए बैलेंस शीट में अभी जो मुझे अनएडजस्टेड प्रॉफिट एंड गेन लॉस है उसको मुझे ट्रांसफर करना है प्रॉफिट और लॉस में, बिकॉज दिस इज नॉट माय बैलेंस शीट आइटम। इसको मैं यहाँ पे क्यों नहीं रख सकता, क्योंकि ये मेरे बैलेंस शीट में रहने वाला आइटम नहीं है। ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का एक कंपोनेंट है जो मुझे एट द एंड ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द मंथ आई शुड ऑलवेज ट्रांसफर इट टू माय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो इसको मैं कैसे ट्रांसफर करूंगा ये अब हम देखते हैं। विल गो टू अकाउंटिंग वाउचर्स। ये अकाउंटिंग वाउचर्स में आके, ऑफ कोर्स मैंने अभी तक आपको अकाउंटिंग वाउचर्स की एंट्री कैसे की जाती है वो मैंने बताई नहीं है, लेकिन ये जो फॉरेन एक्सचेंज गेन लॉस हम कैसे रिमूव कर सकते हैं वो बताने के लिए मैं आपको जर्नल ऑप्शन में लेके जाऊंगा। F7 जर्नल, आप मेरी कर्सर मूवमेंट देख सकते हो। F7 जर्नल में आपको फॉरेक्स जर्नल का ऑप्शन है, उसमें देखिए मुझे क्लास पूछा जा रहा है कि इसका क्लास कौन सा है। वाउचर क्लास है
फॉरेक्स गेन एंड लॉस। इसमें मैं कॉस्ट सेंटर क्लास कोई भी नहीं चूज कर रहा हूं, तो मैं नॉट एप्लीकेबल करके इसको आगे बढ़ा रहा हूं। ये देखिए ऑटोमेटिकली जो मैंने एक लेजर क्रिएट किया था, आपको याद रहेगा, प्रॉफिट और लॉस ऑन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस, वो वहां पे डेबिट हो चुका है। एक मिनट, थोड़ा स्पेलिंग में गलती हुई है तो आई जस्ट करेक्ट दैट। F7 फॉरेक्स गेन एंड लॉस। और अगर यहाँ पे मैं स्पेस बार प्रेस करता हूं तो टैली मुझे उतने ही लेजर बताएगा। यहाँ पे लिस्ट ऑफ टेबल में, लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स में टैली मुझे उतने ही लेजर दिखाएगा जिसमें मुझे फॉरेक्स गेन लॉस एडजस्ट करना है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, टैली मुझे उतने ही लेजर यहाँ पे दिखाएगा जिसमें मुझे फॉरेक्स गेन लॉस एप्लीकेबल हुआ है। तो HIG ओवरसीज पे वो बता रहे हैं बिल नंबर 2, डेट 25 मई 2020, आपको 11,100 रुपए का इसमें 22,200 अनएडजस्टेड, सॉरी हम एंट्री 25 तारीख को कर रहा है, इसके लिए वो 22,200 से ले रहा है। अगर हम 26 तारीख को करें, 26 तारीख को क्यों मैं कर रहा हूँ, क्योंकि 26 तारीख में हमने एक रिसीट एंट्री पास की थी, अगर याद है आपको तो दिखा देता हूँ। ये 26 तारीख को हमने एक रिसीट एंट्री पास की थी। तो अगर मैं 25 को पास करूं तो वो जो पहले वाला हमारा प्रॉफिट एंड लॉस गेन लॉस था वो मुझे दिखाई दे रहा है 22,200। लेकिन मैं अगर 26 तारीख को यही एंट्री पास करूं, F7 जर्नल फॉरेक्स जर्नल सॉरी एंड वाउचर क्लास जर्नल फॉरेक्स गेन लॉस, और यहाँ पे HIG ओवरसीज देखिए अभी 11,100 रुपया दिखा रहा है। पहले 22,200 दिखा रहा था, अभी 11,100। ये 22,200 क्यों दिखा रहा था, तभी हमने 73 के हिसाब से सॉरी 75 के हिसाब से हमने परचेस किया था और 77 हिसाब से रेट से हम सेल कर रहे थे। लेकिन जब भी मेरा ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया तभी उसने देखा कि मेरा सेल्स रेट था वो 77 था, और मेरा जो रिसीट यानी अमाउंट रिसीट हो गया वो रेट आ गया 78 से, यानी ₹1 पर डॉलर मुझे प्रॉफिट हो गया। सो $11,100 पे मुझे ₹1 के हिसाब से ₹11,100 का प्रॉफिट हुआ है, वो मैं बुक कर रहा हूँ यहाँ पे, बिंग प्रॉफिट ऑन फॉरेन ट्रांजैक्शंस बुक्ड, ये लिख दीजिए। तो अब हम फिर से बैलेंस शीट में जाके देखते हैं कि क्या हमारा इफेक्ट हुआ है। तो बैलेंस शीट में आप देख रहे होंगे तो यहाँ से वो निकल चुका है, वो बात जो थी वो निकल चुकी है। अगर मैं 25 मई के डेट से देखूं तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही थी, सॉरी 25 अप्रैल 25 मई, ये देखिए अनएडजस्टेड फॉरेक्स गेन लॉस था। लेकिन अगर मैं 26 को देखूं तो अभी वो निकल चुका है, राइट, यहाँ से निकल चुका है। अभी वो कहाँ पे आया, मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में आया है। ये देखिए प्रॉफिट लॉस ऑन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन, यानी मैं अभी प्रॉपरली जो मेरा नोशनल प्रॉफिट था उसको मैं एक्चुअल प्रॉफिट में कन्वर्ट कर चुका हूं, और ये एक्चुअल प्रॉफिट जो है मैंने अभी मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दिया है। एंड दिस पर्टिकुलर आइटम बिलोंग टू दिस प्लेस ओनली, राइट, क्योंकि जो भी मुझे प्रॉफिट होने वाला है मुझे गवर्नमेंट को बताना है कि मुझे ये चीज पे, अगर याद है आपको तो अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हो तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न में सब डिफाइन करना पड़ता है कि मेरा फिक्स एसेट कितना है, मेरा रिकरिंग डिपॉजिट कितना है, मेरा सेविंग अकाउंट्स कितने हैं, और इस पे जो मुझे इंटरेस्ट मिला है फिक्स एसेट फिक्स डिपॉजिट पे, तो उसका मुझे इंटरेस्ट मेरे प्रॉफिट में दिखाना होता है कि इतना प्रॉफिट मुझे मेरे इंटरेस्ट के रूप में आया है, इंटरेस्ट के स्वरूप में आया है। इसमें से FD का इंटरेस्ट इतना था और RD का इंटरेस्ट इतना था, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट इतना था, राइट। सो दिस वे यू हैव टू डिफाइन इट इन different sections in your ITR, that is income tax return. Anyway, we will move ahead and वाउचर टाइप, विल कम टू वाउचर टाइप नाउ। देखिए वाउचर टाइप में मुझे फिर से क्रिएट डिस्प्ले ऑल्टर के ऑप्शन मिल रहे हैं। आधा वाउचर टाइप कैसे क्रिएट करना है वो तो हम देख चुके, फिर से हम देख लेंगे कि वाउचर टाइप कैसे बनाया जाता है। तो वाउचर टाइप बनाए, आपको एडिशनल वाउचर टाइप बनाने की जरूरत क्यों होती है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा था कि पेमेंट में अगर मुझे बैंक पेमेंट डिफरेंट दिखाना है और कैश पेमेंट डिफरेंट वाउचर टाइप थ्रू दिखाना है, उनकी सीरीज नंबरिंग जो रहती है वो मुझे अलग से मेंटेन करनी है, तो मैं एक नया वाउचर टाइप बनाता हूँ। सेम वे
अगर सेल्स की मैं बात करूं तो सेल्स में मुझे सेल्स मुंबई का अलग सेल्स दिखाना है, सेल्स पुणे का सेल्स अलग दिखाना है, सेल्स वाउचर टाइप अलग दिखाना है बेसिकली, क्योंकि मुझे नंबरिंग सीरीज अलग से मेंटेन करनी है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, मेरा जो इनवॉइस नंबर रहता है इसकी सीरीज में अलग से मेंटेन करना चाहता हूँ, तो मैं एक नया वाउचर टाइप बनाता हूँ। काफी सारे लोग प्रोडक्ट वाइज भी बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी खुद की बात करूँ एप्सएप सॉल्यूशंस की, वी डील इनटू वन टैली प्रोडक्ट। अभी टैली प्रोडक्ट में हमारे कुछ वेरिएंट्स आते हैं, जैसे सिंगल यूजर टैली, सिंगल यूजर टैली, मल्टी यूजर, तो ये हमारे दो वाउचर टाइप हो गए। सेम वे टीएसएस, यानी हम टीएसएस का जो आपको इनवॉइस इशू करते हैं, दैट इज सब्सक्रिप्शन। मैंने आपके सब्सक्रिप्शन के बारे में बात की थी, ये देखिए, ये जो सब्सक्रिप्शन इंफॉर्मेशन पैनल में दिख रहा है, टीएसएस एक्सपायरी 28 फरवरी 2021, ये देखिए, राइट। ये सब्सक्रिप्शन का बिलिंग जो हम करते हैं, तो उसके लिए हमने एक नया वाउचर टाइप। तो अगर प्रोडक्ट वाइज आपको वाउचर टाइप बनाना है तो आप प्रोडक्ट वाइज वाउचर टाइप बना सकते हो, अगर आपको ब्रांच वाइज बनाना है तो ब्रांच वाइज बना सकते हो। डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन क्रिएट योर ओन वाउचर टाइप। सो यहाँ पे मुझे अगर फिलहाल मुझे बनाना है सेल्स ऑफ मुंबई, तो सेल्स मुंबई के नाम से मैं यहाँ पे वाउचर टाइप बना रहा हूँ। इसका प्राइमरी वाउचर टाइप रहेगा सेल्स, यानी इसका जो प्राइमरी जो वाउचर है वो सेल रहेगा। इसका एब्रीविएशन बाय डिफॉल्ट टैली लेता है, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट व्हाट इज द एब्रीविएशन आई शुड राइट। इन केस यू वांट टू राइट योर ओन एब्रीविएशन यू कैन राइट, एल्स यू कैन मूव अहेड। इसमें नंबर ऑफ वाउचर, मेथड ऑफ नंबरिंग वाउचर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ओवरऑल अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड ओवरऑल जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल। सेल्स रहेगा तो जीएसटी पॉइंट ऑफ व्यू मैं आपको बता दूं कि आपका जो वाउचर नंबर होता है उसकी जो विड्थ है, उसकी जो लेंथ है, वो 16 डिजिट से या तो 16 कैरेक्टर से आगे नहीं बढ़नी चाहिए। 16 कैरेक्टर तक ही सीमित रखिए, उससे ज्यादा बढ़ता है तो आपको सेल्स रिटर्न या तो जीएसटी रिटर्न में आपको तकलीफें उठानी पड़ती है। आपका सेल्स जीएसटी रिटर्न में वो एक्सेप्ट नहीं होता, वो बिल एक्सेप्ट नहीं होता। बिल एक्सेप्ट हुआ तो वो 16 कैरेक्टर लेके बाकी के कैरेक्टर आपके कट कर सकता है। सो प्लीज कीप इट इन माइंड, योर नंबरिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अभी नंबरिंग की मेथड कितनी है, एक तो ऑटोमेटिक है, दूसरा ऑटोमेटिक मैनुअल और राइट है, तीसरा है मैनुअल, चौथा है मल्टी यूजर ऑटो और पांचवा है नन। नन यानी मुझे कोई भी वाउचर टाइप नंबरिंग अभी करना ही नहीं है। काफी ऑर्गेनाइजेशंस मैंने देखे इसको नन रखते हैं और एट द एंड ऑफ द ईयर उसको ऑटोमेटिक में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या होता है, बीच में जो इंसर्शन या डिलीशन होता है, अभी जो नए यूजर्स है, नॉन अकाउंटिंग बैकग्राउंड से, नॉन टैली यूजर्स है, उनको शायद ये इंसर्शन और डिलीशन का समझ में नहीं आएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा उसमें क्या होता है कि इन केस आपने अगर पेमेंट के वाउचर्स बनाए हैं, पूरे साल में आपने 1000 पेमेंट के वाउचर बना लिए, आपको एक 1 अप्रैल को आपका वाउचर नंबर था 1 और 31 अप्रैल को आपने जब फिनिश किया आपका अकाउंटिंग ईयर, तभी आपका लास्ट वाउचर नंबर था 1000। तो इसके बीच में 1 to 1000 आपके टोटल सबको नंबरिंग आ चुके हैं। अभी कोई अकाउंटेंट को लगा अरे मेरा एक एंट्री रह चुका है, मेरा 25 मार्च का एंट्री मुझे करना है, तो 25 मार्च पे जाके कोई एक एंट्री कर लेता है और 25 मार्च को आप अज्यूम कीजिए मेरा लास्ट जो नंबर था वो था 955, 955 नंबर था और मेरा 31 मार्च का लास्ट नंबर है 1000। अभी 955 के वही 25वें डेट में जाके मैं अभी कोई नया वाउचर इंसर्ट करता हूँ पेमेंट का, तो उसका नंबर आएगा 956। यानी जो 26 मार्च का 956 स्टार्टिंग नंबर था वो 25 मार्च के लास्ट वाउचर ने ले लिया और बाकी के नंबर आगे पुश हो गए। मतलब जो 956 नंबर था वो भी 957 हो गया एंड सो ऑन, 957 वाला 958 हो गया एंड सो ऑन, और जो लास्ट मेरा 1000 नंबर था वो भी 1001 करके हो गया, 1001। तो इनका नंबरिंग पूरा सीक्वेंस चेंज हो गया। सो कीपिंग दैट थिंग इन माइंड यू नीड टू, आई मीन मेनी ऑर्गेनाइजेशन कीप देम नंबरिंग एज नल। नल से क्या होता है कि कोई भी वहां पे वाउचर नंबरिंग नहीं आता। एट द एंड ऑफ द ईयर जब भी ऑडिट होता है तो उसको ऑटोमेटिक कर देते हैं, तो उसको वो नंबरिंग के हिसाब से वो अपना वाउचर्स प्रिंट करके ऑडिट के लिए, सॉरी बिफोर ऑडिट दे डू इट, एंड ऑडिट के लिए वो अपना फाइल रेडी करते हैं। तो इस तरह से ऑटोमेटिक नंबरिंग वर्क करता है। आगे चल के हम देखेंगे ऑटोमेटिक नंबरिंग सिलेक्ट करने के बाद यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में हमें क्या डिटेल्स प्रोवाइड करना है। सो यूज एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, एडवांस कॉन्फ़िगरेशन में मुझे स्पेसिफाई करना है मेरा स्टार्टिंग नंबर कौन सा होना चाहिए। मैं कहता हूँ मेरा स्टार्टिंग नंबर 1 से मेरा
वाउचर चालू होना चाहिए, तो 1 दे दिया। मेरा विड्थ ऑफ न्यूमेरिकल पार्ट मुझे 4 चाहिए, यानी मेरा जो नंबर वाला पार्ट है, जो आप 1 नंबर दे रहे हो, तो वो मुझे 4 अंकों तक सीमित रखना है, यानी अप टू 9999, 9999 तक ही मुझे सीमित करना है। अगर आपको लग रहा है कि आप 10,000 के ऊपर आपके वाउचर जाने वाले, तो आप यहाँ पे 5 दीजिए, तो वो 99,999 तक जाएगा। 6 करेंगे तो आप 10 लाख तक जा सकते हो, राइट? तो मैं तो 4 कहता हूँ। प्रीफिल विद 0, यानी इसको 0 से प्रीफिल होना चाहिए क्या? अगर मैंने इसकी विड्थ 4 दी है, इसको जो स्पेस दिए है नंबरिंग की 4 दी है, और वो लास्ट डिजिट पे मुझे 1 नंबर दिखाएगा, जो पहले वाले 3 जो कैरेक्टर्स है वो तो ब्लैंक दिखाने वाला है, तो मुझे ब्लैंक रखने वाले हैं या प्रीफिल विद 0, यानी 00001, 4 के पार्ट के हिसाब से, उसके विड्थ के हिसाब से वो मुझे प्रीफिल 0 करना है, तो आई कैन से यस टू इट। तो वो स्टार्टिंग मेरा नंबर होगा 0001, 0001। रिस्टार्ट नंबरिंग, आपको नंबरिंग कैसे चाहिए? हर 1 तारीख को मेरा 1 नंबरिंग स्टार्ट होना चाहिए। ये आपको डेली चाहिए, मंथली चाहिए, वीकली चाहिए या ईयरली चाहिए? डेली यानी हर दिन मेरा नंबर 1 से स्टार्ट होगा, यानी 1 अप्रैल को भी 1 दिखाएगा, 2 अप्रैल को भी 1 दिखाएगा। इस तरह से आपका नंबर डुप्लीकेट होगा। मंथली चाहिए तो 1 से 30 तारीख, 31 तारीख तक, पूरा मंथ तक वो सीक्वेंस में ले लेगा। फिर से जैसे नया डेट आता है, 1 तारीख आ जाता है, वो फिर से नंबरिंग स्टार्ट करेगा 1 से, अगर आप मंथली यहाँ पे ऑप्शन चूज करते हो तो। सेम वे वीकली और ईयरली। सो मैक्सिमम जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको ईयरली के फॉर्म में रखते हैं, तो यू कैन चूज इट ईयरली, यानी हर साल मेरा नंबर 1 से स्टार्ट होना चाहिए, एंड दिस इज द आइडियल अकाउंटिंग मेथड। मैं रिपीट करता हूँ, कीपिंग इट ईयरली इज द आइडियल मेथड। यस, मेनी ऑर्गेनाइजेशन डू इट मंथली बेसिस फॉर देयर फाइलिंग पर्पज, उनको फाइलिंग थोड़ा अच्छा हो जाए, इसके लिए वो मंथली के हिसाब से वहां पे डिफाइन करते हैं। और फिर हर महीने अगर मैं यहाँ पे मंथली दे रहा हूँ, तो हर महीने शायद मेरा नंबर 1 ही रहने वाला है, 1 अप्रैल को भी 1 रहेगा, 1 मई को भी, तो इट कैन क्रिएट अ डुप्लीकेशन इशू। और इसके लिए मुझे प्रीफिक्स और सफिक्स का ऑप्शन यहाँ पे मिला है, प्रीफिक्स और सफिक्स। तो प्रीफिक्स एंड सफिक्स में मैं क्या देख सकता हूँ? प्रीफिक्स में एक तो मैं कंपनी का नाम लग सकता हूँ, जैसे RIL है, राइट, या तो सिर्फ R देख सकता हूँ, या तो अगर मुझे मंथली मैंने नंबरिंग रखा है तो मैं कहता हूँ APR। सो APR का अप्रैल का 1 वाउचर, इस तरीके से मैं मेरा प्रीफिक्स डिफाइन कर सकता हूँ। फर्स्ट में से है तो मैं कहता हूँ कि ये MAY आना चाहिए, राइट। और यहाँ पे जो है सफिक्स जो है, इसमें मैं हमेशा मेरा अकाउंटिंग ईयर लिखता हूँ, 2021, 2021, 21-22, 22-23, इस तरह से मैं अकाउंटिंग ईयर लिखता हूँ। ये लिखने की जरूरत क्या है? तो इसका रीजन ऐसे है कि अगर आपका डेटा 2 साल, 3 साल, 4 साल का डेटा एक ही कंपनी में है, अगर आपने उसको स्प्लिट नहीं किया है ईयर वाइज, तो आपको दिक्कतें हो सकती है। आपको दिक्कतें किस तरीके से हो सकती है मैं आपको बता सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई सप्लायर है, आपका सप्लायर है XYZ सप्लायर प्राइवेट लिमिटेड, ये उनका नाम है। अभी XYZ सप्लायर को सप्लायर से आपने 1 तारीख को कुछ मटेरियल परचेस किया था, ओके, 1 लाख रुपए का 1 नंबर का आपका परचेस वाउचर था, या तो आपका सॉरी आपका इनवॉइस नंबर था, वो सप्लायर को दिया हुआ। या तो हम कस्टमर की बात करें, आपने कस्टमर को सेल किया है, 1 अप्रैल को आपने सेल किया, उसका नंबर था 1 और उसका अमाउंट था 1 लाख। अभी ये आपने किया था 1 अप्रैल 19 को, मैं रिपीट करता हूँ, 1 अप्रैल 19 को आपने ये सेल किया था, और 1 अप्रैल 20 को आपने वही कस्टमर को फिर से 1 नंबर वाला इनवॉइस दे दिया। देखिए, 19-20 में भी एक नंबर का इनवॉइस वो ABC कस्टमर को था, और 1 अप्रैल 20 को भी ये 1 नंबर वाला इनवॉइस है, वो भी ABC कस्टमर को गया है, और अपने यहाँ पे सफिक्स कुछ भी नहीं डिफाइन किया। तो क्या होगा? आपका नंबरिंग APR, ये देखिए प्रीफिक्स है APR-1, ये 1 अप्रैल 19 को भी रहेगा, और APR-1 1 अप्रैल 20 को भी वही रहने वाला है। तो ये दोनों बिल आपके मर्ज हो जाएंगे। आई रिपीट, ये दोनों बिल आपके मर्ज हो जाएंगे और आपको मर्ज वाला इंफॉर्मेशन बताएंगे, विच विल बी क्वाइट कंफ्यूजिंग फॉर द यूजर। यूजर के लिए भी कंफ्यूजन होगी और आपके कस्टमर के लिए भी कंफ्यूजन होगी। इसके लिए मैं हम आपको हमेशा कहते हैं कि ये जो सफिक्स है आप यहाँ पे डिफाइन करिए, आप हमेशा सफिक्स डिफाइन करिए,
तो 19-20 का वाउचर आपको 19-20 दिखाएगा और 20-21 का वाउचर आपको 20-21 के हिसाब से दिखाएगा. But as I said, please ensure that your width should not exceed 16 characters. So APR dash ये 4 कैरेक्टर हो गए और ये 1 2 3 4 5 6 ये 6 कैरेक्टर, यानी 10 कैरेक्टर मेरे यहाँ पे गए और ये जो 4 कैरेक्टर यानी 14 कैरेक्टर तक की अभी मेरी विड्थ है. दैट इज वेल विद इन द डिफाइंड लिमिट ऑफ जीएसटी पर्पज के लिए जो 16 की लिमिट है उसमें मेरी ये रिक्वायरमेंट बैठ रही है, क्योंकि मेरी अभी जो वाउचर नंबरिंग की विड्थ है वो ओवरऑल 14 डिजिट या 14 कैरेक्टर तक की आ रही है, विच इज फाइन विथ मी. इस तरीके से मैं आप ऑटोमेटिक नंबरिंग बना सकते हो. इसको मैं सेव करता हूँ एक बार, फिर से मैं जाता हूँ, नया वाउचर टाइप क्रिएट करता हूँ. सेल्स मुंबई बनाया, उसी तरह सेल्स पुणे बनाता हूँ. सेल्स पुणे में भी मैं यहाँ पे वाउचर टाइप सेल चूज करता हूँ जो प्राइमरी वाउचर टाइप है. यहाँ पे वाउचर नंबरिंग जो है ऑटोमेटिक मैनुअल करता हूँ. ऑटोमेटिक मैनुअल में क्या होता है, जैसे मैंने कहा वाउचर नंबर ऑटोमेटिक रहेगा और आपने बीच में कोई भी वाउचर डिलीट कर दिया या कोई वाउचर इंसर्ट कर दिया तो आपके जो आगे वाले नंबरिंग है वो सफल नहीं होते. समझ में आ रही मेरी बात? अगर मेरे 1 से लेके 1000 तक नंबर के वाउचर नंबरिंग ऑलरेडी हो चुके हैं, इसमें कोई भी वाउचर में डिलीट करता हूँ तो क्या होगा, जो मेरा आगे वाला नंबर है वो एक नंबर पीछे आ जाएगा. या तो इंसर्ट करता हूँ तो मेरा आगे वाला नंबर है एक नंबर आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि वो उसका जो नेक्स्ट नंबर था उसका वो नंबर मैंने जो नया इंसर्ट किया है वाउचर वो कैप्चर कर लेगा. राइट? ये हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे अगर इनकेस आपको कुछ डिफिकल्टी है, क्योंकि मैं तो अभी वर्बली बता रहा हूँ आपको. अगर देखना है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ. F4 करके मैं एक वाउचर टाइप चूज करता हूँ, पेमेंट, यानी सारे पेमेंट आ गए. अभी क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पे वाउचर नंबर देखिए 1 2 3 4 5, 20 तारीख को ही सारे वाउचर है. ओके, 1 2 3 4 5, इसको मैं करके 21 करता हूँ. इसको अभी 4 नंबर को अगर मैंने देखिए 4 नंबर को अगर मैंने 22 कर दिया तो क्या हो गया, ये जो 5 नंबर वाला वाउचर है वो 4 नंबर पे आ गया और 4 नंबर वाला वाउचर 5 तारीख पे आ गया, क्योंकि ये डेट बेस्ड सॉर्टिंग करता है. मैं रिपीट करता हूँ, डेट बेस्ड सॉर्टिंग करता है. और यही इसमें से अगर मैं कन्वेंस का वाउचर डिलीट करता हूँ, ध्यान दीजिए मेरे स्क्रीन पे, ध्यान दीजिए, 1 नंबर वाला वाउचर है 5000, 2 नंबर वाला वाउचर है 2000, 3 नंबर वाला वाउचर है 1000, 4 नंबर वाला वाउचर है 10,000, 5 नंबर वाला है 50,000. अभी 1,000 वाला वाउचर में जो 3 नंबर है उसको मैं डिलीट करता हूँ. 1 मिनट में बैकअप लेता हूँ पहले, तो मैं आपको और किस तरह से वर्किंग हो सकता है मैं बताऊँ. एक विद इन फ्यू सेकेंड्स आई विल टेक अ बैकअप. ये आज की तारीख 25 है तो मैं 25/5 करके यहाँ पे बैकअप ले रहा हूँ. मुझे सिर्फ ये कंपनी का बैकअप चाहिए, RIL, तो मैंने बैकअप ले लिया. अभी मैं इसमें से डिलीट करता हूँ, डिस्प्ले डेबुक में जा रहा हूँ. डिस्प्ले डेबुक, डेबुक यानी आपकी एक दिन में कितने वाउचर्स एंटर हुए हैं, यानी आपकी जो करंट डेट अभी बाहर सिलेक्टेड है, करंट डेट, वो दिन का आपको डेबुक दिखाता है. ये देखिए फॉर 26 मई 2020 ये आपको दिखा रहा है यहाँ. ओके, अगर इसको मैं चेंज कर दूं और 1 अप्रैल से ले लूं, फर्स्ट 4 से ब्लैंक रखूं, तो बाय डिफॉल्ट वो स्टार्टिंग डेट ऑफ योर पीरियड ले लेता है. जो आपने बाहर पीरियड सेट किया उसका स्टार्टिंग डेट लेता है. F4 करके इसको मैं कहता हूँ ऑल पेमेंट वाउचर्स, या तो पेमेंट वाउचर्स, या तो ये पेमेंट वाउचर सारे दिखाई दे. अभी इसमें से 1000 वाला वाउचर मैं डिलीट कर रहा हूँ जिसका नंबर है 3. देख लीजिए 3 नंबर वाला वाउचर है जो 1000 रुपए का है और 4 नंबर वाला है 10,000 रुपए का है. इसको मैं डिलीट करता हूँ. ऑल डी, ये देखिए डिलीट का बटन है नीचे, ऑल डी डिलीट, सिलेक्ट यस. क्या हुआ, अभी जो 4 नंबर वाला वाउचर था वो भी 3 नंबर पे आ चुका है क्योंकि मैंने डिलीट कर दिया, और जो 5 नंबर का वाउचर था वो बिकम 4 नंबर हो गया. सो इस तरीके से आपको अगर ऑटोमेटिक नंबरिंग में आपने कुछ भी डिलीट और इंसर्ट करते हो तो आपको ये दिक्कतें क्रिएट कर सकता है. व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट रिस्टोर माय बैकअप बैक, और फिर से एक एग्जांपल इसमें बताना चाहूंगा. इसको ओवरराइट यस करता हूँ, सिलेक्ट एंड RIL. आई एम गोइंग फास्ट बिकॉज एज ऑफ नाउ
बैकअप एंड रिस्टोर मैं आपको दिखा चुका हूँ। रिस्टोर कमांड आप यूज नहीं करेंगे, इसके लिए मैं रिस्टोर कमांड आपको ज्यादा बताने वाला नहीं हूँ। F4 करके मैं इसको पेमेंट वाउचर चूज कर दूं, देखिए वो वाउचर आ गया क्योंकि मैंने बैकअप रिस्टोर कर दिया। जो डिलीट किया था वाउचर वो फिर से आ गया क्योंकि मैंने बैकअप लिया था, उसी को रिस्टोर कर दिया। अगर इसको मैं कैंसिल करता हूँ, ये देखिए कैंसिल, ये कैंसिल का बटन है। ये डिलीट और कैंसिल में क्या फर्क है आपको समझ में लेना चाहिए। डिलीट करने से वाउचर पूरा नष्ट होता है मेरे डेटाबेस से, पूरा डिलीट होता है, इरेज होता है। लेकिन कैंसिल कर दूं तो मेरा वाउचर वहीं पे रहता है। देखिए मेरा वाउचर वहीं पे है, उसका नंबरिंग भी वहीं पे है, लेकिन इसमें की इंफॉर्मेशन ब्लैंक हो गई। इसमें की इंफॉर्मेशन क्या होगी, ब्लैंक हो गई। मेरा नंबरिंग रिटर्न हुआ है, ये देखिए ऊपर क्या लिख के आया, कैंसल्ड। और अगर एक कोई भी गुड अकाउंटेंट, गुड डेटा एंट्री पर्सन है, उसको मैं हमेशा कहता हूँ आप कैंसिल करने से पहले यहाँ पे नरेशन लिखो। आप नरेशन लिखोगे तो कभी भी आप इन फ्यूचर ये वाउचर फिर से देखना चाहते हो कि यहाँ पे मैंने ये वाउचर को कैंसिल क्यों किया था, तो आपको रीजनिंग यहाँ पे नरेशन में मिलेगा, क्योंकि नरेशन आपका फील्ड जो है वो आपका इंटैक्ट रहता है। नरेशन फील्ड में लिखिए कि ये वजह से मैंने वाउचर डिलीट सॉरी कैंसिल किया है, तो आपको इसका इंफॉर्मेशन मिल जाए। क्योंकि काफी कबार अगर आपका जीएसटी ऑडिट या और कोई ऑडिट है तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किस रीजन से आपने वाउचर कैंसिल किया है। तो ये कैंसिल वर्क्स इन दिस वे। देखिए कैंसिल करके बता रहा है आपका नंबरिंग कहाँ पे भी टॉस नहीं हुआ है, आपका नंबरिंग कहाँ पे भी शेक नहीं हुआ है, सेम रह गया है, बिकॉज आई हैव कैंसिल द वाउचर। सो प्लीज यूज कैंसिल कमांड इंस्टेड ऑफ डिलीट, which will keep your numbering intact। आपको नंबरिंग को अफेक्ट नहीं करेगा। हाँ, लेकिन आप इंसर्ट करोगे तो आपका नंबरिंग इसमें हिलने वाला है। अगर मैं यहाँ पे इंसर्ट कर लूं तो क्या हो गया, मेरा 3 नंबर नया आ गया और कैंसिल वाउचर अभी 4 हो जाएगा। तो एग्जांपल आपको मैं बता ही देता हूँ। कन्वेंस का अगर मैं एक 750 रुपए का वाउचर डालू और यहाँ पे कहूँ कि ये मैंने अक्षय के लिए यूज किया है कैश, तो ये देखिए मेरा जो 3 नंबर जो कैंसिल वाउचर था वो अभी 4 नंबर होगा, क्योंकि ये जो वाउचर है मेरे बीच में इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन है, इंसर्ट वाउचर ऑल्ट आई, राइट। इंसर्ट करके उसमें मैंने इंसर्ट कर दिया तो मेरा वाउचर यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है और जो मेरा नंबरिंग है वो आगे पुश हुआ है। जो 3 नंबर का कैंसिल हुआ था अभी 4 नंबर पे है, जो 4 नंबर पे हुआ था वो 5 हो गया, 5 का नंबर 6 हो गया। इस तरह से आपका नंबरिंग अफेक्ट करता है। ऑटोमेटिक नंबरिंग है तो, और अब कोई कैंसिल और डिलीट करते हो, सॉरी डिलीट या इंसर्ट करते हो तो I'll go back, I'll take you back to that information again। Accounts info voucher type alter, right? इसमें मैं अभी सेल्स पुणे ये मैं वाउचर बना रहा था, इसमें मैं आ चुका हूँ। सेल्स पुणे के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे टाइप ऑफ वाउचर इज सेल एंड आई से ऑटोमेटिक मैनुअल। अभी ऑटोमेटिक मैनुअल क्या होता है, ऑटोमेटिक तो आपको समझ में आ गया, जो ऑटोमेटिक नंबरिंग कर देता है। मैनुअल भी आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर इसको मैं मैनुअल दे दूं। तो मैनुअल में क्या होगा, एवरी टाइम इफ आई से F8 फॉर सेल्स, F8 फॉर सेल्स, इसमें देखिए अभी 2 वाउचर पर टाइप बढ़ चुके हैं, सेल्स, सेल्स मुंबई एंड सेल्स पुणे। तो सेल्स पुणे चूज करता हूं तो ये देखिए नंबरिंग है ना, ये ऑटोमेटिक मुझे मैनुअल आ गया, मैं खुद टाइप कर सकता हूं, राइट। ये अगर इसमें मैं प्रिवेंट डुप्लीकेट यस कर दिया तो ये डुप्लीकेट एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सपोज मैं स्टार्टिंग नंबर 1 दिया, मैंने खुद का नंबर लिख दिया PUN 001-2020, ये खुद हाथ से लिखना पड़ेगा मुझे। तो इससे क्या होगा, नंबरिंग मेरा कहाँ पे भी आगे पीछे नहीं होने वाला इस वजह से। तो सपोज एक मैं सिंपल सा एक इनवॉइस बना देता हूँ। एक सपोज ये रेफ्रिजरेटर्स है मेरे पास, तो इसका मैं एक इनवॉइस बना देता हूँ। 12 नंबर से इसमें से मैं 2 बेच रहा हूँ और से मेरा जरा कॉस्ट देख लेता हूँ। कॉस्ट है मेरा 20,000, तो मैं बेच रहा हूँ सपोज 27,000 में, 7,000 रुपए का प्रॉफिट मार्जिन रख के अगर मैं बेच रहा हूँ। ये मेरा सेल्स लेजर है, देखिए ये अकाउंटेंट को ये लैंग्वेज समझ में आएगी कि डेबिट टू पार्टी और क्रेडिट टू सेल्स। यहाँ पे डेबिट ऊपर पार्टी हुई और क्रेडिट सेल्स अकाउंट यहाँ पे 54,000 हुआ है। यहाँ पे अगर मुझे जीएसटी मेंशन करना है तो मैं जीएसटी देता हूँ, CGST, SGST, so I'll choose CGST
I'll choose SGST which will be calculated accordingly. इसको मैं सेव करता हूँ, राइट। अभी देखिए फिर से सेल्स पूरे में नंबर मेरा ब्लैंक दिखाई दे रहा है, ब्लैंक दिखाई दे रहा है। मैं इसको कंट्रोल आर करूँ तो रिपीट हो जाता है। मैं फिर से कहता हूँ, मैं वाउचर अकाउंटिंग वाउचर में आता हूँ, सेल्स पुणे चूज करता हूँ, सेल्स पुणे चूज करके मुझे नंबरिंग का जो कॉलम है वो मैनुअल है, मैं कुछ भी लिखूं वो एक्सेप्ट कर लेगा, सिर्फ सिवाय डुप्लीकेट के। सो ऑल्ट आर करो, इसको करूँ तो देखिए डुप्लीकेट वाउचर नंबर कह के मुझे वो आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे सेटिंग की थी कि प्रिवेंट डुप्लीकेट्स यस। देखिए मैनुअल के नीचे आपको ऑप्शन आ रहा है प्रिवेंट डुप्लीकेट यस, राइट। तो इस सेटिंग की वजह से आपको डुप्लीकेशन अलो नहीं कर रहा है। लेकिन मैं कंट्रोल आर करूं और यहाँ पे जाके मेरा नंबर चेंज करूं तो मुझे आगे बढ़ने देगा। लेकिन ये हो गया पूरा मैनुअल तरीका, आपको पूरे मैनुअल तरीके से नंबरिंग आपको रीटाइप करना होता है, right? So we'll move to next method. So we'll go to watch type option, we'll go to alter, we'll say sales Pune. यहाँ पे मैं कहता हूँ मैनुअल ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। अब ये ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड क्या होता है? तो ऑटोमेटिक और मैनुअल का कॉम्बिनेशन बनके हमारा आ गया है ऑप्शन एक्चुअल ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड। कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। ऑटोमेटिक मैनुअल ओवरराइड, इसमें ये मैनुअल की तरह ही वर्क करता है, लेकिन नंबरिंग जो आपका है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। जैसे ऑटोमेटिक नंबरिंग में आ रहा था वैसे ऑटोमेटिकली नंबर फील्ड में मेरा फिलअप होके नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर आने के बाद मैं उसको अगर एडिट करना चाहूँ तो एडिट कर भी सकता। ऑटोमेटिक नंबरिंग में एडिट का फैसिलिटी नहीं था, मैनुअल नंबरिंग में पूरा रीटाइपिंग था, रीटाइपिंग में आप एडिट कर सकते थे। लेकिन ऑटोमेटिक मैनुअल में क्या हो रहा है कि मेरा नंबर ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है और मैन्युअली मैं उसको एडिट भी कर पा रहा हूँ। और इसमें ये सेम मुझे स्क्रीन दिखाई देगी कि मुझे इसका नंबरिंग किस तरह से रखना चाहिए जो ऑटोमेटिक में था। तो मैं सेम तरीका नंबरिंग यहाँ पे रखना चाहूंगा। से पुणे है, इसके लिए मैं सिर्फ पुणे लिख रहा हूँ और ये 20-21 वाला पार्ट में वैसे ही रख रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ इस इंफॉर्मेशन को। अभी देखिए ये देखिए नंबरिंग ऑटोमेटिकली आ गया। लेकिन देखिए मैंने प्रीफिल विद 0 नो कहा, इसके लिए वो गैप छोड़ के 1 नंबर दिखा रहा है। PUN दिख रहा है आपको, राइट? नहीं, प्रीफिल विद 0 यस कहता हूं तो वो अभी 0 से प्रीफिल करेगा। ये देखिए इस तरीके से आप ये वाउचर बना सकते हैं, राइट? शायद डुप्लीकेट प्रिवेंट डुप्लीकेट यस होने के बावजूद हमें कोई तकलीफ दे रहा है। एनीवे शायद नंबरे में कुछ गड़बड़ रहेगा, इसके लिए वो डुप्लीकेट अलो कर रहा है। सो विल मूव हेड। आपको समझ में आ रहेगा कि ये ऑटोमेटिक वाउचर नंबरिंग, मैनुअल वाउचर नंबरिंग या तो ऑटोमेटिक मैनुअल और राइट किस तरह से वर्क होता है। और यू कैन स्टार्ट यूजिंग द method which is applicable to you or which is very much convenient to you. Account info, voucher type, and I'll say alter sales Pune. अभी हम नंबरिंग से आगे बढ़ते हैं और देखिए यूज इफेक्टिव डेट फॉर वाउचर्स। यूज इफेक्टिव डेट्स फॉर वाउचर क्या करता है कि अगर आपको देखिए काफी सारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है ईआरपी सिस्टम यूज होता है या तो टैली एज एन ईआरपी सिस्टम यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है सिक्योरिटी कंट्रोल में काफी चीजें डिफाइन की जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डेटा एंट्री राइट किसी को दूं या तो अल्टरेशन राइट किसी को भी दूं तो इसमें मैं डिफाइन करता हूँ कि वो सिर्फ पिछले वाले 2 दिन की एंट्री अल्टर कर सकता है या तो पिछले वाले 2 दिन की एंट्री क्रिएट कर सकता है, तो पिछले वाले 1 महीने की एंट्री क्रिएट कर सकता है। सपोज आज की तारीख 26 मई है, टैली फिर से मैं कहता हूँ सिस्टम डेट से नहीं चलता। जस्ट रिपीट माय वर्ड्स, सॉरी आज की डेट 25 मई है तो ये सिस्टम डेट पे नहीं चलता। मेरा कर्सर मूवमेंट देखिए, यहाँ पे मेरी सिस्टम डेट क्या है 25 मई और यहाँ पे मेरी डेट ऑफ लास्ट एंट्री क्या है 26 में। तो टैली विल ऑलवेज पिक अप योर डेट ऑफ लास्ट एंट्री एज योर डेट। आपका कोई भी सिक्योरिटी कंट्रोल का फाइट अगर उसको एग्जीक्यूट करना है तो ये डेट के हिसाब से वो एग्जीक्यूट कर लेगा। तो अगर मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ सिक्योरिटी कंट्रोल में
कि ये पर्टिकुलर एक नया सिक्योरिटी बनाया मैंने D1 करके, इसमें कहता हूँ यूज बेसिक फैसिलिटीज ऑफ ओनर। ये हम सीखेंगे क्या कैसे। ये देखिए यहाँ पे ऑप्शन है डेज अलॉट फॉर बैकडेटेड वाउचर्स, यानी ये कितना दिन पीछे का एंट्री कर सकता है, या तो कितना दिन ये पीछे का एंट्री ऑल्टर कर सकता है। 0 यानी एक भी दिन का नहीं, यानी आज का एंट्री किया सेव हो गया तो उसको अल्टर नहीं कर पाएगा। मैंने कहा 2 दिन का, तो आज का और कल का पकड़ के 2 दिन का एंट्री वो क्रिएट या ऑल्टर जैसे डिफाइन किया है वैसे कर सकता है। और इसमें दूसरा पैरामीटर है कि ये है, ये 30 अप्रैल के पहले का एंट्री। अगर यहाँ पे मैं एग्जाम्पल 50 दिन दे दूं, ये 50 दिन जाके पीछे वाला एंट्री ऑल्टर या क्रिएट कर सकता है। लेकिन इसका जो कट ऑफ डेट है ये 30 अप्रैल है, क्योंकि 30 अप्रैल तक मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीट है, इंटरनल ऑडिट हो चुका है, उसको मैं चेंज नहीं करना चाहता। तो टैली चेक करेगा कि जो इसका डेट ऑफ लास्ट एंट्री है 26 मई, 26 मई से 50 दिन या 30 अप्रैल, कौन सी नजदीक है। जो नजदीक वाला जो पैरामीटर है वो पहले पकड़ेगा, यानी 30 अप्रैल नजदीक है, डेफिनेटली 30 अप्रैल नजदीक है। 26 में से आप काउंट करोगे 30 अप्रैल तक तो 26 दिन ही होते, और 50 दिन बैकडेटेड मैंने कहा है, तो 50 या 26 जो भी लोएस्ट फिगर है उसको वो अलो करेगा, वो एप्लीकेबल करेगा। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि उसको मैं क्रिएट ऑल्टर बैकडेटेड वाउचर्स में कहता हूँ, यानी वो 50 दिन तक का क्रिएट ऑल्टर कर सकता है, लेकिन उसमें कट ऑफ डेट है 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल के बाद पहले वाला एंट्री कोई भी एडिट नहीं कर पाएगा। तो ये ऐसे अगर आपको सेटिंग्स आपके सिक्योरिटी कंट्रोल में दी हुई है, या तो आपके एडमिन में आपको अप्लाई कर ली है, तो आपको ये जो ऑप्शन है, सॉरी, ये जो ऑप्शन है यूज इफेक्टिव डेट्स फॉर वाउचर, अभी ये किसके लिए यूज होता है। अगर मुझे परमिशन ही नहीं है बैकडेटेड एंट्री करने का, एग्जांपल अज्यूम कीजिए आपका जो सप्लायर है, आपको जो मटेरियल सप्लाई करता है, उसने आपको मटेरियल सप्लाई किया है, कभी किया है 25 अप्रैल को, 25 अप्रैल को उसने मटेरियल सप्लाई, या तो 25 मार्च को सप्लाई किया मटेरियल, लेकिन उसके बाद लॉकडाउन शुरू हो गया। लॉकडाउन शुरू होने की वजह से उसका ऑफिस चालू नहीं था, उसका ऑफिस चालू हो गया, सपोज आज से चालू हुआ है, आज से चालू हुआ है, तो वो आके पहले ऑफिस में क्या करेगा, इनवॉइस बनाएगा। इनवॉइस बनाते वक्त उसको याद आ गया, अरे मैं तो पिछला डेट वाला एंट्री कर ही नहीं सकता। तो इसके लिए ऑप्शन क्या है, क्योंकि अगर वो आज के डेट में एंट्री करता है तो आपके सप्लायर का नुकसान हो जाएगा। आपके सप्लायर ने आपको कहा है कि मैं आपको 30 दिन का क्रेडिट दूंगा, लेकिन ऑलरेडी 60 दिन का क्रेडिट हो चुका है। और अगर मैं आज के दिन पे एंट्री करता हूँ, यानी 25 मई को मैं एंट्री कर रहा हूँ, तो आज से वो 30 दिन आगे वाला क्रेडिट डेज पकड़ेगा, यानी 30 दिन और बढ़ेगा, यानी ओवरऑल 90 दिन का उसका क्रेडिट हो जाएगा, विच इज वेरी अनजस्टिफाइड और वेरी it will be making injustice to your supplier, ये आपके सप्लायर के साथ अन्याय होगा। इसके लिए आपको यूज इफेक्टिव डेट फॉर वाउचर, आपको ऑप्शन यस करोगे तो आपको ये आपका जो क्रेडिट पीरियड है वो कौन से डेट से कैलकुलेट होना चाहिए वो हम डिफाइन करते हैं। यानी आपका जो क्रेडिट पीरियड है, अभी आप वहां पे 2 डेट आपको आएगी वाउचर एंट्री करते वक्त, एक तो आपका डेट ऑफ वाउचर आएगा और एक इफेक्टिव डेट ऑफ वाउचर। सो आपका डेट ऑफ वाउचर भले आज का रहने दो, यानी 25 मई का रहने दो, लेकिन इसमें जो इफेक्टिव डेट ऑफ वाउचर रहेगा वो 25 मार्च का रहेगा, राइट। तो इस तरह से आपका इफेक्टिव डेट ऑफ वाउचर आपको हेल्प करता है। मेक दिस वाउचर टाइप एज ऑप्शनल बाय डिफॉल्ट, ये मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि ऑप्शनल बाय डिफॉल्ट यानी क्या होता है। अगर कोई जूनियर डेटा एंट्री पर्सन एंट्री कर रहा है और सीनियर मेंबर उसको ऑडिट करना चाहता है, सीनियर मेंबर उसको ऑडिट करना चाहता है, तो बाय डिफॉल्ट वो जो जूनियर मेंबर है जो भी एंट्री करेगा वो ऑप्शनल करके ही सेव होना चाहिए। अगर आपको याद रहेगा, ये अगर मैं ऑप्शनल करके सेव करता हूँ तो ये मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को अफेक्ट नहीं करने वाले। ये जो ऑप्शनल है, ये देखिए ऑप्शनल आ गया, ये ऑप्शनल मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को हीट नहीं करने वाले। और अगर मैं सीनियर पर्सन हूँ, वो मैं एंट्री चेक करके उसको रेगुलराइज करता हूँ, ये देखिए मेरा बटन क्लिक, माउस क्लिक देखिए, इसको मैं रेगुलराइज करता हूँ तो ऑप्शनल टैग निकल के मैं इसको रीसेव करता हूँ, तो दिस विल हिट माय बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आ जाएगा, राइट। इसके लिए वो हमें ऑप्शन दिया गया हुआ है अकाउंट्स इन्फो में, वाउचर टाइप में मेक ऑप्शनल एज डिफॉल्ट। तो यहां से आप कर सकते हो, जो भी एंट्री करेगा वो बाय डिफॉल्ट ऑप्शनल में चला जाए।
यूज नरेशन फॉर अलो नरेशन इन वाउचर, ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि ये जो वाउचर में जो नरेशन दिखता है ये आपको चाहिए या नहीं चाहिए। डेफिनेटली चाहिए, क्योंकि हमें नरेशन तो लिखना पड़ता है। सो दिस इज व्हाट इज द ऑप्शन इज ऑल अबाउट अकाउंट्स इन्फो वाउचर टाइप ऑल्टर सेल्स उन्हें प्रोवाइड नरेशन फॉर ईच लेजर इन वाउचर। इसको मैं यस करता हूं तो क्या इफेक्ट होता है वो देख लीजिए। अभी मुझे हर एक एंट्री में नरेशन चाहिए। ये जो फाइनल वाला नरेशन तो है ही, मेरा कर्सर मूवमेंट देखिए, ये नरेशन तो है ही, लेकिन मैं कन्वेंस लेजर चूज करूं तो यहाँ पे भी नरेशन आना चाहिए। सॉरी, हमने पेमेंट वाउचर को नहीं किया, अकाउंट वाउचर ऑल्टर से पेमेंट। पेमेंट में जाके मैं कहता हूँ प्रोवाइड नरेशन फॉर ईच लेजर इन वाउचर। तो सपोज मैं कन्विंस करके चूज कर रहा हूँ 500 रुपया, और यहाँ पे मैं नरेशन लिख रहा हूँ, तो ये देखिए इंडिविजुअल नरेशन आ गया, देख सकते हो। अभी सेम लेजर में, अभी फॉर एग्जांपल ये कभी आपको हेल्पफुल होता है, आप जब भी किसी भी आपके ऑफिस बॉय या तो ऑफिस सेल्स पर्सन को आप पैसे एडवांस देते हो कोई टूर के लिए या तो कोई काम के लिए, और वो आके आपको वाउचर सबमिट कर देता है। सो सपोज स्टाफ वेलफेयर, उसने बाहर खाना खा लिया, तो हम स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंसेस में उसको डेबिट कराते हैं। तो इसको मैं सेव करता हूं। ये देखिए स्टाफ वेलफेयर पे उसने सपोज 300 रुपया स्पेंड किया है, ये 300 रुपया स्पेंड किया, तो यहाँ पे मैं नरेशन लिख सकता हूँ पेड फॉर लंच, राइट, पेड फॉर लंच। यहाँ पे मैं कहता हूँ पेड फॉर टैक्सी। तो इंडिविजुअल नरेशन में लिख सकता हूँ, और मेरा एक फाइनल नरेशन लिख सकता हूँ बीइंग अमाउंट पेड टू अक्षय। जो भी मुझे लिखना है लिख सकता हूँ, राइट, फॉर ऑफिस वर्क। इस तरीके से आपका नरेशन फॉर ईच एंट्री वर्क करता है। और होप यू अंडरस्टूड द इंफॉर्मेशन व्हाट आई वांट टू इंपार्ट यू। सो इस तरीके से आप इसमें ये पर्टिकुलर ऑप्शन यूज कर सकते हो। अलो नरेशन, प्रोवाइड नरेशन फॉर ईच लेजर इन वाउचर, यस। एनेबल डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशंस, ये मैं आपको बेसिकली वाउचर क्लास की तरह वर्क होता है। वाउचर क्लास के बारे में अभी तक हमने सिर्फ जर्नल वाउचर में फॉरेक्स वाउचर क्लास बनाया था, वो एक वाउचर था। इसके बारे में मैं आपको, जब भी हम बिलिंग डेटा एंट्री स्टार्ट करेंगे, जब भी हम एक्चुअल डेटा एंट्री स्टार्ट करेंगे, शायद कल से स्टार्ट करेंगे, उस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये ऑप्शन कैसे वर्क होता है। आपके वाउचर्स कैसे बनाएंगे, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीट, जर्नल, ये सब हम वाउचर एंट्री सेक्शन में शायद कल से देख पाएंगे। अभी हमें इन्वेंट्री का भी कवर करना है, सो शायद थोड़ा ही हम पार्ट कल इन्वेंट्री पार्ट फिनिश करके इमीडिएटली वाउचर एंट्री पार्ट। प्रिंट वाउचर आफ्टर सेविंग, अगर आपको वाउचर प्रिंट कराना है इमीडिएटली, जैसे आप वाउचर सेव करते हो उसी वक्त आपको अगर सेव प्रिंट करते हो, प्रिंट कराना है, तो आप इस ऑप्शन को यस करते हो, कर सकते हो। तो जैसे ही आप वाउचर एक्सेप्ट यस और नो कहते हो, वो आपको प्रिंट के लिए ऑप्शन पूछेगा, आपको प्रिंट कराना है या नहीं कराना है। Whether you want to print the voucher, yes or no, you space, Tally will immediately prompt you for printing. Use for pause invoicing, ये भी pause invoicing इसके लिए यूज होता है कि पॉइंट ऑफ सेल, अगर आपको याद रहेगा कि कोई भी आप मे बी सुपर स्टोर में जाते हो, तो वो या तो बिग बाजार, डीमार्ट बेस्ट एग्जांपल, आप जाते हो तो वो क्या करता है कि जो सेल्स काउंटर पे बैठा हुआ पर्सन आपका मटेरियल लेता है, एक स्कैनिंग में डाल देता है। स्कैनिंग यानी उसके बाद एक तो हैंडल स्कैनर रहता है या तो टेबल स्कैनर रहता है। टेबल स्कैनर पे उस बारकोड स्कैन कर देता है, इमीडिएटली उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे आता है, उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल। या तो और एक एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर आप रेस्टोरेंट में जाते हो, आप कोई भी चीज की ऑर्डर कर देते हो, शायद वो स्नैक्स वाला रेस्टोरेंट रहेगा मोस्टली, तो आप मे बी मसाला डोसा, इडली सांबार, वड़ा सांबार, वट एवर द आइटम्स अवेलेबल, सैंडविच, वो उस पे लिस्ट पे लिखा रहता है, स्क्रीन पे लिखा रहता है, वो उसको टच करता है। इसको हम पॉइंट ऑफ सेल स्क्रीन कहते हैं। सो पॉइंट ऑफ सेल्स यानी इजी सेल, आपको सिलेक्शन की झंझट नहीं रहती, उसमें आपको प्री डिफाइंड कुछ मेन्यूज रहते हैं, आप चूज करिए, उसका क्वांटिटी डालिए, अमाउंट डालिए, वो अपने आप आगे बढ़ जाएगा। तो ये पॉइंट ऑफ सेल्स का ऑप्शन भी हमें अवेलेबल है टैली में, वो हम कर सकते हैं। डिफॉल्ट बैंक, डिफॉल्ट बैंक यानी क्या होता है कि अभी आज रिसेंटली, मतलब अभी ये जो सबसे ई ट्रांसफर, एनईएफटी
का जमाना आ गया है। पहले चेक का जमाना था, अभी एनईएफटी का जमाना है। तो इसमें आपको बेसिकली काफी सारे जो कस्टमर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको अपने इनवॉइस में बैंक की इंफॉर्मेशन प्रिंट करनी होती है। मैं रिपीट करता हूँ, काफी सारे कस्टमर्स को, ऑर्गेनाइजेशन को अपने इनवॉइस के ऊपर बैंक की इंफॉर्मेशन प्रिंट करानी होती है। तो आपको कौन सी बैंक की इंफॉर्मेशन प्रिंट करानी है, यानी प्लीज पे टू दिस बैंक अकाउंट। तो वो बैंक के डिटेल आते हैं, एचडीएफसी बैंक है, आईडीबीआई, स्टेट बैंक, जो भी आपका बैंक है आप चूज करिए। वो बैंक में आपको कस्टमर आपका पैसा ट्रांसफर करेगा। तो बैंक का आपका बैंक अकाउंट नंबर आता है, एनईएफटी नंबर आता है, बैंक नेम आता है, ब्रांच नेम आता है। ये चारों चीज मिला के आपका एनईएफटी ट्रांसफर इजी हो जाता है। इसके लिए आपका बैंक इंफॉर्मेशन कौन सा प्रिंट करना है, ये पर्टिकुलर वाउचर टाइप के लिए ये मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। ज्यूरिसडिक्शन, ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है? Suppose I am based in Mumbai, so I'll write my jurisdiction is Mumbai. If I'm based in Navi Mumbai, I'll write Navi Mumbai. If I'm in Thane, I'll say Thane. If I'm in Nasik, then I'll write Nasik. Pune है तो Pune, Nagpur है तो Nagpur. ये jurisdiction, why it plays very important role. Assume, इसका importance मैं आपको बताना चाहूंगा। Assume आपने सेल किया है कलकत्ता में, आप हो मुंबई में, आपने सेल किया है कलकत्ता में। ओके, कलकत्ता में सेल करने के बाद वो आपके इनवॉइसिंग में कुछ डिस्प्यूट हो गया, आपके कस्टमर और आपके बीच में कुछ डिस्प्यूट हो गया वो इनवॉइस को लेके। तो वो कस्टमर ने क्या कर दिया, कलकत्ता कोर्ट पे जाके आपके खिलाफ एक केस दर्ज की। मैं रिपीट करता हूँ, कलकत्ता कोर्ट में जाके उसने आपके खिलाफ केस दर्ज की। अगर आपके इनवॉइस में ये प्रिंटेड नहीं है, सब्जेक्ट टू मुंबई ज्यूरिसडिक्शन, यानी मुंबई जो भी इसका डिस्प्यूट आएगा ये मुंबई ज्यूरिसडिक्शन में ही सॉल्व होगा। ये अगर आपका प्रिंटेड नहीं है तो आपको कलकत्ता भागना पड़ेगा। जस्ट हियर मी आउट अगेन, मेरे वर्ड्स फिर से सुन लीजिए। अगर आपके कस्टमर ने दूसरे सिटी में आपके खिलाफ केस डाल दी, दिस इज वेरी हाइपोथेटिकल एग्जांपल, आई डू नॉट वांट दिस टू हैपन विद एनीबॉडी। अनफॉर्चुनेटली किसके पास ऐसा, किसके साथ ऐसा ना हो, लेकिन कभी कभार ऐसी सिचुएशन आ जाए और आपके इंफॉर्मेशन, आपके इनवॉइस पे इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आपको वो सिटी में जाना पड़ेगा फॉर केस डेट। जब भी आपके खिलाफ केस की डेट आती है आपको उस दिन वो कोर्ट में प्रेजेंट करना पड़ेगा। सो इसके लिए प्लीज इंश्योर दैट यू ऑलवेज राइट योर ज्यूरिसडिक्शन, कि आपका ज्यूरिसडिक्शन कौन सा है। आई होप आई एम क्लियर। ये बेसिकली इनवॉइस पे प्रिंट होता है, सब्जेक्ट टू मुंबई ज्यूरिसडिक्शन, सब्जेक्ट टू कल्याण डोंबिवली jurisdiction, subject to Navi Mumbai jurisdiction, subject to Pune jurisdiction. This is what is the information. State alter declaration, ये क्या होता है? अगर आपको याद रहेगा, अगर आपने कभी भी इनवॉइसिंग किया है वैट के जमाने में, जो नए अकाउंटेंट्स है शायद जो जीएसटी ही जानते हैं, उनके लिए शायद ये काम की इंफॉर्मेशन नहीं है ज्यादा। लेकिन जब भी वैट का जमाना था तो वैट में हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना था, आई वी हियर बाय डिक्लेयर दैट दिस इनवॉइस is pertains to and adhering to this particular blah 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 law, जो भी अपना वैट का था, वैल्यू एडेड टैक्स लॉ डेटेड सम 2002 डेट आता था, पूरा वो डिक्लेरेशन हमें यहाँ पे टाइप करना पड़ता था और हमारे इनवॉइस में प्रिंट होना जरूरी था। तो हम ये प्रिंट भी करते थे इनवॉइस में। सो ये डिक्लेरेशन टाइप करने की जगह यहाँ पे टैली ने प्रोवाइड की है। जीएसटी के लिए तो सिंपल डिक्लेरेशन है, वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो जीएसटी के लिए आजकल ये डिक्लेरेशन का ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंस नहीं बचा है, लेकिन ये सेल्स टैक्स और वैट के जमाने में वो आपको वो वैसे लिखना पड़ता था। सॉरी 2005 का था वैट का, तो एज पर जो भी वैट वैट जो स्टैट्यूट था वो हिसाब से आपको वहां पे डिक्लेरेशन लिखना पड़ता था। नेम ऑफ द क्लास, अभी ये नेम ऑफ द क्लास कैसे प्ले करता है, आपने फॉरेक्स एंट्री में तो देख लिया, नेम ऑफ द क्लास हमने बनाया था फॉरेक्स जनरल एंट्री। यहाँ पे मुझे एक ये बनाना है, एक क्लास बनाना है, मे बी आई से जीएसटी 12%, या तो इसको कहता है जीएसटी 18%। चलिए एक मैं एक क्लास बना दिया, एक्सक्लूड दिस ग्रुप, यानी ये ग्रुप में जितने भी लेजर आते हैं उसको एक्सक्लूड कर लो। मुझे बैंक को नहीं सेल करना है तो बैंक नहीं चाहिए, मुझे कैश में भी सेल नहीं करना है, शायद कर सकता हूँ लेकिन ब्रांच को शायद क्रेडिटर्स को नहीं करना है, तो ये एक्सक्लूड कर दो। तो वो लेजर दिखाई नहीं देंगे आपको। इंक्लूड, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सक्लूड और इंक्लूड के बारे में बताया था, वैसे ही कोई मैं ग्रुप बना लूं,
फॉर एग्जाम्पल सन्ड्री डेटर्स है, सन्ड्री डेटर्स के अंदर सन्ड्री डेटर्स पुणे और सन्ड्री डेटर्स मुंबई कर लूं, बाहर में एक्सक्लूड कर दूं सन्ड्री डेटर्स, लेकिन इंक्लूड में कर लूं सन्ड्री डेटर्स पुणे, सो सिर्फ सन्ड्री डेटर्स पुणे के ही लेजर्स मुझे डिस्प्ले हो जाएंगे। आपका सेल्स का लेजर नेम कौन सा होना चाहिए वो आप यहाँ पे डिफाइन करते हो, सेल्स लेजर नेम सेल्स। अगर आपको इसमें अल्टर करना है जीएसटी का कौन सा आना चाहिए तो सेल्स टैक्सेबल, तो वो लिख लीजिए। ओवरराइड यूजिंग आइटम डिफॉल्ट, आइटम डिफॉल्ट क्या होता है मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगा जब भी हम स्टॉक आइटम क्रिएट करने वाले हैं तभी। यहाँ पे मैं लेजर नेम में चूज करता हूँ, ये 9% 18% वाला है, इसके लिए मैं कहता हूँ ये सीजीएसटी 9% है और ये एसजीएसटी 9% है। ये डिफाइन करके मैं क्लास सेव करता हूँ। इसका हेल्प हमें कैसे होता है हम देख सकते हैं, वाउचर एंट्री में जाके एफ8 यानी सेल्स है, सेल्स को मैं सिलेक्ट करूँ, सेल्स पुणे, देखिए क्लास पूछता है जीएसटी 18%, जीएसटी 18% को चूज करता हूँ तो ऑटोमेटिकली टेम्पलेट मेरे सामने आ जाता है। ये टेम्पलेट मेरे सामने आ गया, मुझे ये लेजर सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं होती, मुझे सिर्फ कस्टमर का, आप देखिए जैसे मैंने एक्सक्लूड किया था तो मुझे बैंक अकाउंट नहीं दिखाई दे रहे, यहाँ पे क्रेडिटर्स अकाउंट भी नहीं दिखाई दे रहे लिस्ट में। याद आ रहा है आपको, ये मैंने यहाँ पे जो डिफाइन किया था अभी जीएसटी 18% के अंदर, एक्सक्लूड दिस ग्रुप्स, यानी ये ग्रुप के जितने भी लेजर है मुझे लिस्टिंग में नहीं दिखने चाहिए, ये मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। और इस वजह से मुझे सिर्फ ये जो इतने जो ग्रुप है जो लेजर है इतने ही लेजर मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो एबीसी कस्टमर को चूज करता हूँ, यहाँ पे नेम ऑफ द आइटम डलवाता हूँ, देखिए सब नीचे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होके कैलकुलेट होके आ गया है। डू आई हैव टू डू एनीथिंग, मुझे कुछ करना पड़ा नहीं, मेरी डेटा एंट्री काफी इजी हो चुकी है बिकॉज ऑफ सिलेक्शन ऑफ वाउचर क्लास। सो दिस इज हाउ you can select the voucher class for your own use, very simple to use, very simple to create. I'll go back to the previous option again. I think we have finished with accounting info master creation. Statutory info we will be covering when we will take the sessions on GST and TDS. At that time, I'll explain what is statutory. You can create the masters, right? So I think our time is also up. Parera ji, I'm so sorry I could not complete the manufacturing, that is BOM detail you required. In case you want information from me, you can connect me after the session through WhatsApp or through call. I will help you out creating UM. Anyway, we are going to already exact, created, sir. Sir, yeah, already so, created in this ERP system. If I'll share the data to you, can you explain me briefly? yeah, I'll do that. I'll do that. Okay. Otherwise, Tushar, yeah, somebody from your team. Yes, yes, yes. Anybody can help. Even you can get in touch with Tushar. He will help you in that. Yeah, yeah. Everything is ready. I'll share you the data and take the information from Tushar or somebody else. Right. So I think we have finished our session for today here. Tomorrow we'll continue with the inventory info. Very interesting session for tomorrow because inventory, you will find lots of parameters to be defined and how you can define, how you can create, how you can use F12 options. All this can be learnt in tomorrow's sessions. I expect you to join on time, without any delays. 11 o'clock we want to start because the more we delay, the ending takes little longer. So that's the reason I request everybody to be available by 11, at least by 11, or maybe 1 or 2 minutes earlier is always welcome, right? So we will finish here and I'll take question and answers and you may ask me, right? So thanks for today and see you tomorrow in the next session. Okay, bye-bye. Meanwhile, okay.